हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है सर। हेलो। हेलो। नाउ नाउ। हाँ, नाउ थोड़ा ठीक है। अच्छा।
हेलो। हेलो सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी आ रहा है। सही आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? थोड़ा सा कम आ रहा कम आ है। रहा है। हाँ। अभी? हेलो। अभी ठीक है अभी सर। ठीक है ना? स्टार्ट करें? हाँ सर। ओके, so let's start. A very good evening to all of you. I hope you are doing well. So we were studying about the economic planning. This is a particularly very important topic for the मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. डेफिनेटली मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में. So we were discussing what is planning. Okay. So what we will do, we just set some general goals, and in order to achieve these goals, we disintegrate these goals into smaller objectives. And objectives are usually for a small period of time, or their span of time is relatively small, and goals are always long term. So, if you want to achieve our goal, if you want to accomplish our goals, we must disintegrate or differentiate those that goal into small objectives. And if we will achieve these objectives with efficiency, then definitely we will accomplish our goals, long-term goals. So, what government do in economic planning? They set some goals, then they decide some objectives, and they try to achieve those objectives within the time span they decide, and then they achieve their goals, and a specific time period is there. Following steps you need to do: first, you need to prepare the list of problems which economy is facing. For example, yesterday we discussed about the poverty is one of the problem, unemployment is problem, high fiscal deficit can be the problem, high debt can be the problem, inflation can be the problem, starvation is there, that can also be the problem. So these are all the problems which economy might face. So first we will enumerate the problems which currently economy is facing. After that, what we will do, we will rearrange the list on the basis of priority. Okay, which problem is the most prior to us? Like starvation will take hierarchy in terms of priority, and the other problems like poverty, unemployment are also there, but immediately you need to solve the problem of starvation. Otherwise, hunger, deaths would be there due to hunger, which is not which is a humanitarian issue. So first we must solve that issue. So we will rearrange the problems on the basis of the priority. After that, we will identify the problems which can be solved in the immediate short run. Okay, like starvation can be solved. We can define the area, and that targeted area must be provided with the food grains and cooked meals, so that those people who are suffering from hunger can be don't face the starvation kind of issue. So first we will make the list, then we will rearrange on the basis of priority, then identify the problem of the short run and the long run also. Then fixing the target. Now we are making some specific goals, like for the long term, the poverty is a long term goal, poverty elevation. So we will make some specific goals that within 1 year we need to do this, within 1 year we need to do this. Okay, within 2 years we will achieve this much. So we'll make some threshold that within as the time will pass, we will achieve some our specific objectives. Then the amount of resources needed we must know. अमाउंट कितना चाहिए, मोबिलाइज द रिसोर्सेज, कहाँ से आएंगे रिसोर्सेज पूरा. देन ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करो, नहीं है तो आउटसोर्स करो. देन जब सब प्लानिंग हो गई, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, उसको एग्जीक्यूट करो प्लान को. वाइल एग्जीक्यूटिंग यू मस्ट डू द पीरियडिक रिव्यू. तो पीरियडिक रिव्यू से ये पता चलेगा कि अगर आपके प्लान के साथ या फिर इस प्लान में कोई अगर ड्रॉबैक है तो उसको आप क्या कर पाओ, टाइम पे ठीक कर पाओ, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ. ये हमने कल देख लिया था. Then economic systems, we discussed about economic system. Economic systems are nothing but the society and government usually organize and distribute the available resources. So the principle on the basis of which societies or government or any authority distribute and organize the available resources, goods, services, and all those things
among the people. Among people, they are going to distribute. So that principle makes the differentiation that one system can have one principle, the other system can have other principle. So different countries adopt different principles, and that they are called that their economic system. तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा भी हो सकता है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो. Then four main type of economic systems are there: traditional, command, market, and the mixed. Traditional is like the primitive society in which nobody have specialization in any labor. There's no division of labor. People are just living for their subsistence. They are ensuring their livelihood. They don't have so much. They don't have surplus. They are just hunter gatherers and they are living their life. So surplus का concept नहीं है यहाँ पे, और surplus का concept नहीं है तो trade का concept भी नहीं है. ओके, सो ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगोशिएशन नहीं, वॉर नहीं किसी चीज के लिए. तो काइंड ऑफ पीसफुल सोसाइटी. केओटिक है, केओस है, बट फिर भी पीसफुल है बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है किसी चीज को लेके. व्हेन यू आर नॉट कॉम्पिटिंग फॉर समथिंग, तो फिर वहां पे थोड़ा सा एक सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं वहां पे, तो सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म तक. तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में वेरी लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन था नहीं. सेकंड और थर्ड वर्ल्ड नेशन में आज भी आपको मिलता है रूरल सेटिंग्स में. ट्राइब्स जो है अभी भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हैं. लैक द पोटेंशियल टू जनरेट सरप्लस बिकॉज स्पेशलाइजेशन नहीं है तो सरप्लस जनरेट नहीं कर पाते. प्रिमिटिव नेचर है और हाईली सस्टेनेबल है. सस्टेनेबल इसलिए बिकॉज केओस तो है, बट वो केओस जो है वो वायलेंस नहीं बन रहा है बिकॉज कॉम्पिटिशन नहीं है किसी चीज को लेके. अगर सरप्लस होता है तो फिर उसके लिए क्या रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम हैव सस्टेनेबिलिटी, वेरी लिटिल टू वेस्ट. वेस्टेज का भी नहीं चक्कर है, जितना उगा रहे उतना खा जा रहे. Then command economic system. Command economic system means dominant central authority would be there. Central authority will decide that what will be produced and how it will be produced and how it will be distributed among the society. So usually this kind of concept came after the introduction of the Marxist philosophy, that communism came into picture, socialism came into picture, that society will rule and those people who are or that institution will be made by people themselves who will govern them. तो वो जो इंस्टीट्यूशन होगा वो ही डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस होगा. और गुड फॉर वन वुड बी गुड फॉर ऑल. मतलब सोसाइटी के लिए कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं है. उनको जो भी प्रोडक्शन करना है वो अल्टीमेटली स्टेट मेजोरिटी ऑफ टैक्स की फॉर्म में ले लेगा और इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट रहेगा. दैट इज द सोशलिज्म. तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सोशलिज्म इन विच सोसाइटी वुड बी एट द. इट हैव सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑल्सो. इसमें मेरिट का सिस्टम नहीं बन रहा है, ड्रॉबैक रहता है, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा है. मतलब सबको पता है कि स्टेट विल डू वेलफेयर फॉर अस, तो नोबडी इज वेरी एंथुजियास्टिक टू अर्न मनी और टू क्रिएट वेल्थ. सो दिस इज द कमांड इकोनॉमिक सिस्टम. तो इन कमांड इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट पीपल आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस. प्राइवेट पीपल को अलाउ नहीं, और अलाउ है तो वहां पर स्टेट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और स्टेट के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा. प्राइवेट पीपल और उनपे एक कैप भी रहेगा कि आप इतने से ज्यादा एक्यूमुलेट वेल्थ नहीं कर सकते. तो फिर एक मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि भाई इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते, तो मेहनत करने से क्या मतलब, उतना है बाकी तो स्टेट ले लेगा. तो ये कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का एक ओवरव्यू है. सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज फ्री मार्केट. मार्केट इज गॉड एंड दिस इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. मीन्स जो भी मार्केट में अच्छे से रोल प्ले करेगा, जो मार्केट में अच्छे से क्या करेगा, क्या बोलते हैं, जो भी मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट करने की कैपेसिटी रखेगा वही कॉम्पीट करेगा और ऊपर आएगा. पर ये कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म का एक बिलीफ है कि मार्केट एक गॉड है, मार्केट को फ्री रखो, ऑल द अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन. सो दिस इज द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, द काइंड ऑफ कैपिटलिज्म. तो इसमें क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे प्राइवेट प्लेयर के पास रहते हैं. स्टेट का इंटरफेरेंस इन्होंने छोड़ रखा है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है. स्टेट पॉलिटिकल स्फीयर संभाले अपना और इकोनॉमिक स्फीयर जो है वो मार्केट पे छोड़ दे, मार्केट अपने आप क्या करेगा, सॉल्व करेगा. देन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मींस सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रेडिशनल, सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द मार्केट, फ्री मार्केट एंड द सम ऑफ द कमांड इकोनॉमी. दोनों के थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट लेके एक मिक्स सिस्टम बनाया है. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है. मोस्ट ऑफ कंट्रीज आज मिक्स्ड इकोनॉमी है बिकॉज इकोनॉमिक स्फीयर को पूरा खुला नहीं छोड़ा जाता कि आप फ्री मार्केट रखो, नहीं. मार्केट को इंसेंटिवाइज किया जाता है, मार्केट को फ्री रखा जाता है कि आप ट्रेड करने के लिए फ्री है, बिजनेस करने के लिए फ्री है. बट कहीं ना कहीं स्टेट या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है ताकि
कभी भी जो ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर है उसको इंश्योर किया जा सके। तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता मार्केट की, हाँ मार्केट के हिसाब से चलेगा, मार्केट के हिसाब से चलेगा तो फिर वो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट वाली फिलोसफी हो जाएगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक ब्लेंड है, थोड़ा सोशलिज्म का, थोड़ा कैपिटलिज्म का, और दोनों को मिक्स करके मिक्स सिस्टम बनाया है। ठीक, तो इस मिक्स सिस्टम में को सर्वाइवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी है प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों क्या करते हैं, एक साथ सर्वाइव करते हैं। देन द सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये हमने डिस्कस किया था कल। ये ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाइफर्केशन हुआ था आइडियोलॉजिकली, एक सोशल, एक फर्स्ट वर्ल्ड बन गया कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाला, सेकेंड वर्ल्ड सोशलिज्म वाला बन गया, और थर्ड वर्ल्ड में वो कंट्रीज थे जिन्होंने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, इंडिया वाज वन ऑफ देम। तो ये जो ट्राइफर्केशन ही मानो इसको, वैसे बाइफर्केशन ही कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड, देन थर्ड वर्ल्ड वो आ गया। तो कैपिटलिज्म में ये था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओन कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अब इसके कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कैपिटलिज्म के, वो क्या है, एनकरेज कंपटीशन। जब आप फ्री रखोगे मार्केट को, तो मार्केट को फ्री रखने पे जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आप फ्री रहोगे बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा। आपको जो बिजनेस करना है आप कर सकते हो, उससे एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा कि आप फ्री हो, आपके पास लिबर्टी है बिजनेस करने की। तो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा सबसे पहली बात। और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर जब बनेगा तो आपको पहली बात की मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द सेंस की अगर आपको एक प्रोडक्ट खरीद, अगर आपको टीवी खरीदना है तो मार्केट में 10 से 20 50 कंपनियां मिल जाएगी आपको। उससे क्या होगा कि क्वालिटी आपके साथ इंश्योर होगी, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बिकॉज कंपटीशन रहेगा तो क्वालिटी पे ध्यान देंगे। सेकंड ये रहेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिलेगा, बिकॉज अगर कोई 1% प्रॉफिटिंग कर रहा होगा और ज्यादा पैसा ले रहा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होती है और क्वालिटी भी आपको कॉम्पिटिटिव अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है किसका, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का। प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद चॉइसेस, चॉइसेस अभी बताया कि चॉइसेस मिलेगी आपको बहुत सारी। देन पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और मार्केट फ्री रहता है तो मार्केट ग्रोथ तो करता है। हमने बोला था ग्रोथ जरूरी नहीं है कि इंक्लूसिव रहे, बट ग्रोथ होगी। मतलब मार्केट में ओवरऑल आपको प्रोडक्शन प्रोसेस ऊपर जाती हुई दिखेगी, बिकॉज कंजम्पशन रहेगा। और ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लेयर्स हैं पूरे मार्केट में सबको बेनिफिट हो, सबके लिए विन विन सिचुएशन, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि विन विन सिचुएशन रहे, बट ड्रॉबैक कभी कभी ये भी रहता है कि जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड है, वो लाइक वो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो वाली बात है। जो बड़े ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कैपिटलिस्ट लोग हैं वो अलाउ नहीं करते किसी स्मॉल इंडस्ट्री को एंटर करने में, और वो खुद ब्रेक इवन पे खेल लेंगे तो उनको इतना नुकसान नहीं होगा। बट जो न्यू एंट्री कर रहा है वो ब्रेक इवन पे नहीं खेल सकता ज्यादा समय तक। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, जितना पैसा लगा रहे हो उतना आपको वापस अर्न उतना ही कर पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो उस ब्रेक इवन पे जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, जो बहुत पैसा पहले से कमा रहा है, वो उस नए जो पर्सन एंटर कर रहा है उसको वो खत्म कर सकता है, उसको अबॉलिश कर सकता है, उसके मार्केट को खत्म कर सकता है। कैसे, बिकॉज वो ऑलरेडी जो पैसा अर्न कर चुका है उससे वो शुरू में हो सकता है कि उसको इतना एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे दे उसके नए आने वाले के प्रोडक्ट को, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए। बिकॉज कितने समय तक आप कर पाओगे, शुरू में तो होता है बिजनेस में कि आपको लॉस भी होता है, आप ब्रेक इवन पे भी चलते हो, बट हमेशा ब्रेक इवन पे नहीं चल सकते ना, आपको कहीं ना कहीं वापस अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बनाना पड़ेगा। तो वो बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं पर छोटी इंडस्ट्री को नहीं टिकने देती है, ये प्रॉब्लम है, और मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी आ जाती है। और मोनोपोली अच्छी नहीं है, मोनोपोली कहीं पर भी अच्छी नहीं है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, मोनोपोली इज नॉट गुड। ठीक है, मोनोपोली की दिक्कतें हैं, वही पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म के क्या है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव मैंने इसमें एक बता दिया नेगेटिव, बाकी ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ग्रोथ तो होगी। बड़ी जो इंडस्ट्री है वो तो ग्रो करने की टेंडेंसी में रहेगी, और छोटी भी ग्रो करेगी, विन विन बन सकता है सबके लिए, पर ना भी बने इसकी भी पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम आएगी मोर इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी वही जो अभी बताया कि भाई अगर वो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है वो बहुत ग्रो करेंगे, तो वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, और छोटे जो बिजनेसमैन है, एमएसएमई, वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, वो कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बिजनेस है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बड़े बिजनेसेस में तो हाई वर्थ जो नेटवर्थ इंडिविजुअल आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे, बट छोटे जो बिजनेसमैन होंगे उनकी उनके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी वजह से एक इनकम डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी आने की पॉसिबिलिटी है। ये सब सर्टन नहीं है मामले, ध्यान रखना, ये सब होगा ही जरूरी नहीं है, इन सब की पॉसिबिलिटी है अगर सिस्टम सही से नहीं चलता है, बैलेंस बना के नहीं चलता है तो मोर इनइक्वलिटी की पॉसिबिलिटी है, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडन्स।
लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट। अब ये सोशल सेफ्टी नेट में यही वाली बात है कि अगर आप कैपिटलिज्म में जा रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट अलाउिंग गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स। यू आर सेइंग दैट स्टेट शुड बी लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर मीन्स स्टेट शुड either it should not intervene in the economic sphere, or if it is intervening, then the intervention should be minimal. Minimal मतलब बहुत कम इंटरवेंशन, कभी कभार थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होना चाहिए। तो means you are not allowing government to intervene. It means market is growing, and the all those people, the private players, all those who have the means of productions are becoming capable, are becoming, having prosperity and earning money, have wealth. But on the other hand, the consumer is also there. There are so many people in the society who don't own means of production, because majority always don't own means of production. Keep in mind, in terms of कैपिटलिज्म की सोसाइटी की जब मैं बात करता हूँ, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की भी मैं बात करता हूँ, जिसमें आपका सोशलिज्म भी है और आपका कैपिटलिज्म भी है, मिक्स की भी बात कर रहे हैं और कैपिटलिज्म की भी बात कर रहे हैं। इन दोनों ही मॉडल में मेजोरिटी जो होती है वो हमेशा उन लोगों की है जो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। मेजोरिटी वही है, मतलब बिजनेसमैन तो 5% होंगे, 95 तो उनके कंज्यूमर ही है। तो जो मेजोरिटी है उनके पास वही ऑप्शन है कि वो बना रहे हैं, आपको उनको यूज करना है, उनका कंज्यूमर बेस बन रहा है और ये एक साइकिल बनता है इकोनॉमी में। बट उन 95% के वेलफेयर करने की जो ऑब्जेक्टिव है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। कैपिटलिज्म में आप अलाउ नहीं कर रहे हो किसको? स्टेट को इंटरवेंशन करने के लिए। स्टेट इंटरवेंशन नहीं कर पाएगा तो रेगुलेट ज्यादा नहीं करेगा, टैक्सेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगा पाएगा, तो ये 95% का वेलफेयर वो कैसे कर पाएगा? तो सोशल सेफ्टी नेट जो है वो क्या हो जाता है, उसकी कमी होती है इसमें, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर डेलिबरेटली कैपिटलिस्ट लोग जो है अपने प्रॉफिट को कर्टेल करके सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रहा है कुछ? कौन बताएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? बताओ जल्दी से। क्या होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? किसी को नहीं पता? ओके, रिवीजन कीजिए पीछे जाके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है कि बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो सोशल सेक्टर में एक्सपेंड करना होता है, जहाँ पे वो अपनी जहाँ पे उनका सेंटर है, जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। आसपास स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं, आसपास आसपास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल सेफ्टी नेट हो सकता है, उसका कमी रहता है बिकॉज कैपिटलिज्म में पैसा कैपिटल लोग कमा रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन, करप्शन में वही है कि थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो है गवर्नमेंट का, बट उसमें भी आप जो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक नेक्सस बन जाता है जिसको कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। कल हमने डिस्कस किया था। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग मोस्टली इकोनॉमिकली मोस्ट कैपिटलिस्ट है, मतलब इनका कैपिटलिज्म की एट्रीब्यूट ज्यादा है इन कंट्रीज में। क्रॉनिक कैपिटलिज्म मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट रन बाय कॉर्पोरेशंस। मतलब कैपिटलिस्ट लोगों के बीच में और स्टेट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में एक नेक्सस होता है, तो वो एक दूसरे को म्यूचुअल सिनर्जी में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रादर उनको जो मेन प्रिंसिपल्स हैं स्टेट गवर्नेंस के या फिर जो कैपिटलिज्म के, उनके हिसाब से नहीं चलना है, वो अपना एक अलग म्यूचुअल सिनर्जी बना के चल रहा है। कम्स द सोशलिज्म। सोशलिज्म में हमने देखा था कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट के पास रहेंगे, और स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन नहीं होगा। इसके पॉजिटिव बातें ये है कि इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा स्टेट, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज रहेंगे। और सोशलिज्म में सोसाइटी सेंटर में होती है, पीपल्स वेलफेयर सेंटर में होता है, तो इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करने की कोशिश करेंगे, सोशल जस्टिस की डायरेक्शन में जाएंगे। स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे बिकॉज उनके पास टैक्सेशन में और सब में मनी रहेगा। ग्रेटर राइट फॉर वर्कर्स एंड इंडिविजुअल, वर्कर्स के लिए तो बना ही है एक हिसाब से। अगर आप इसका ओरिजिन देखोगे तो वर्कर्स प्रोलेटेरिएट के ही रिवोल्ट से ही तो सोशलिज्म पिक्चर में आया।
तो वर्कर्स का वेलफेयर तो देखना ही है, और इंडिविजुअल का, सोसाइटी एज अ होल का देखेंगे। साथ प्रॉब्लम्स ये कि डिपेंड ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब वही है कि गुड फॉर वन इज गुड फॉर ऑल की जो फिलॉसफी है, उसमें आपको ये सबके अंदर बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये जो सोसाइटी है वो वर्क नहीं कर पाएगी। और इसलिए वर्क नहीं कर पाती बिकॉज सोशलिज्म आइडियलिस्टिकली या फिर इसकी ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं आ पाया कंट्रीज में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैन जो है उसका नेचर क्या होता है। मैन मतलब जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है रियलिज्म में कि भाई वो ग्रीडी है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर खुरापात तो करेंगी। तो एक उस हिसाब से कॉपरेशन उनके बीच में बहुत जरूरी है। तो कॉपरेशन बना पाना दिक्कत है, अगर बन रहा है तो वर्क करेगा, नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। गवर्नमेंट में अब्यूज पावर, ऑफ गवर्नमेंट चुनी तो आप नहीं है, बट कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो भी अब्यूज करेगी पावर को, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके, क्योंकि वो भी तो, उनके अंदर भी तो इंटीग्रिटी का लैक हो सकता है, उनके अंदर भी जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए गुड गवर्नेंस वाले वो नहीं होंगे शायद, तो करप्शन होगा। फ्यूअर रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए रिवॉर्ड रहेगा नहीं, बिकॉज क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो रिवॉर्ड वाली चीज लगेगी नहीं, किसी को मोटिवेशन नहीं होगा, एंथुजियाज्म नहीं आएगा काम करने का। ये कंट्रीज हैं जहाँ पे मोस्टली कम्युनिस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की। मिक्स्ड में दोनों का मिक्स रहता है, ठीक है। मिक्स में लेजिस्फेयर सिस्टम नहीं होता। लेजिस्फेयर क्या होता है, स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए इकोनॉमिक स्फेयर में। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और नॉट लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर तो नहीं है, वो तो कैपिटलिज्म में थोड़ा लेजिस्फेयर आ सकता है, मिक्स्ड में नहीं आएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये तो हम समझ गए कि दोनों का एक मिक्स्ड है। प्रॉफिट इसके, सॉरी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वैसे ही है जैसे उनके, बिकॉज ये टू फ्रो एक मोशन है, एक कंटिन्यूम बनता है प्योर कैपिटलिज्म और प्योर सोशलिज्म के बीच में। तभी आप कहाँ रहते हो, इसमें रहते हो मिक्स मॉडल में। मिक्स मॉडल के बारे में ये देख पढ़ चुके हैं अपन। ये देखो कल बताया था ना, मिक्स में कम्युनिज्म और प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में आपको पता है कि ये थोड़ी कैपिटलिस्ट लीनिंग की बात करें मिक्स के साथ, तो यूएसए, जापान, इन सब की लीनिंग है इस तरफ। फ्रांस, स्वीडन को आप थोड़ा सेंट्रल में ले सकते हो। चाइना, वेनेजुएला की सोशलिस्ट लीनिंग है। नॉर्थ कोरिया और कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा जा रहा है। यूएसए थोड़ा प्योर इसकी इस तरफ फ्री मार्केट में ज्यादा बिलीव करता है। तो ये कंट्रीज रहती तो मिक्स्ड में है, पर कहीं ना कहीं इनका जो लीनिंग है वो इधर उधर रहता है। तो इस कंटिन्यूम में चीजें मूव होती रहती है। तो कम्युनिज्म में प्योर प्लान्ड इकोनॉमी है। जैसे नॉर्थ कोरिया आप देखोगे कि वहाँ कम्युनिज्म ही है, वहाँ पे वही डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे वही कम्युनिज्म है, स्टेट ही डिसाइड कर रहा है क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है। फ्री मार्केट का ज्यादा चक्कर नहीं है। यूएसए में मोस्टली आपको फ्री मार्केट मिलेगा। ये डिफरेंसेस हमने कल देख लिए थे। पढ़े यहाँ से आगे। Yes, sir. Yes, sir. सो इकोनॉमिक प्लानिंग, अब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में देखते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकता है प्री में भी और मेंस में भी, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें इसको। सो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया नीड्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हमको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है अपना, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहती है तो सोशल अनरेस्ट आता है। एंड इनकम्स, लोगों की इनकम भी अपने को क्या करनी है, बढ़ानी, बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल होगी। रिवाइव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिवाइव करोगे आप तभी क्या होगा, आपका कैपिटल में पैसा जाएगा, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है दोनों वो सॉल्व हो जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट रिवाइव होगा एंड ग्रोथ बढ़ानी है। अनटेंगल द फाइनेंशियल सेक्टर, अनटेंगल मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको आपको इजी बनाना है। तो अनटेंगल द फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, जो पूरा आपको पता है कि फ्लो ऑफ इनकम होता है, फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ मनी जो होता है, कि हाँ जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगी, और इन्वेस्टमेंट से कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी, बैंक से वो आगे इन्वेस्ट होगी। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है फाइनेंशियल सेक्टर की, उसको आपको अनटेंगल करके इजी बनाना है। नेविगेट द मडीड अप इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में मडीड अप का मतलब है कि वही कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी, उसको प्रॉपरली नेविगेट करके मतलब उसको सही डायरेक्शन में लाना है आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से। इंटरनेशनल ट्रेड को किस कंट्री के साथ कितना होना चाहिए प्रायोरिटाइज करना है। सॉल्व द पेरिनियल प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ, अब ये पुअर एजुकेशन और हेल्थ के भी
आपको जो इशू है उसको सॉल्व करने। एंड द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वाटर स्कार्सिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो है ही है, और वाटर स्कार्सिटी, ये दो, वाटर स्कार्सिटी तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी इंडिया के लिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी चैलेंज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जो हमको सामने दिख रहे हैं। इन चैलेंजेस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप एक अच्छी प्लानिंग प्रोसेस के साथ क्या करोगे, आगे बढ़ो। विद स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो है वो क्या है, कम है, जितनी पॉपुलेशन है उसके रिलेटिवली कम है। एंड द ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलफेयर टू बी डन, बहुत ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन और बहुत उसमें काफी 1/4 तो करीब पॉवर्टी लाइन के नीचे ही जी रहे हैं, तो उनका वेलफेयर इंश्योर करना है। द रोल ऑफ प्लानिंग बिकम्स सिग्निफिकेंट, तो प्लानिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इंडिया द रोल ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी वाज प्लेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंटिल 2014। तो इंडिया में जो प्लानिंग का रोल है ना पोस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कौन प्ले करता था, प्लानिंग कमीशन प्ले करता था 2014 तक। आफ्टरवर्ड्स नीति आयोग, अ पॉलिसी थिंक टैंक, रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। तो 2014 के बाद जब फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया और नीति आयोग उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नीति आयोग आ गया, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और पॉलिसी थिंक टैंक रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विद एन एम टू मेक प्लानिंग अप्रोच मोर इंक्लूसिव एंड बॉटम अप। मोर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब ये है कि जो लास्ट पर्सन है उस तक पेनिट्रेट करना चाहिए, वो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मोर इंक्लूसिव बनाना है, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करना है, डिफरेंट डाइवर्स स्टेट का तो इंक्लूजन है ही, रीजनल रीजन्स को इंक्लूड करना है, सेक्शंस, कास्ट, रिलीजन, सब चीज को क्या करना है, जो एक्सक्लूडेड है उनको इंक्लूड करके उस डेवलपमेंटल स्ट्रीम का पार्ट बनाना है। एंड बॉटम अप, बॉटम अप का क्या मतलब, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब है कि आपकी जो प्लानिंग प्रोसेस रहेगी या जो भी आप विजन बनाओगे, जो भी आप एजेंडा बनाओगे, वो इस तरीके से सेट करोगे कि आपकी जो उसका अचीवमेंट रहे, जो उसको एक तरीका रहे अचीव करने का, वो बॉटम से अप तक जाए। बॉटम से अप मतलब नीचे से उसको प्रॉफिट बेनिफिट मिलता रहे, जो सबसे नीचे है वहां से बेनिफिट ऊपर की तरफ जाए, दैट्स बॉटम अप। एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में ये होता है कि ऊपर से एक सेंट्रलाइज प्लान बनता है और वो पर्कुलेट होते होते नीचे जा रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो था वो अप, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे वाली मतलब अप टू डाउन में जा रहा था। ठीक है, ये बॉटम अप में जा रहा था, मतलब नीचे से ऊपर तक हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था प्लानिंग प्रोसेस में, इसको आपको समझना है कि प्लानिंग कमीशन जो था वो ट्रिकल डाउन वाली थ्योरी में बिलीव करता है। ट्रिकल डाउन का मतलब है कि ऊपर से बड़े जो लेवल है वहां पे अगर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्कुलेट होकर नीचे जाएगा। ये ट्रिकल डाउन की थ्योरी थी। तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में जब आया था उन्होंने ट्रिकल डाउन थ्योरी के साथ चले वो इनिशियली। उसके बाद आप देखोगे कि नीति आयोग जो आया उन्होंने कहा कि नहीं, बॉटम अप हमको अप्रोच, उन्होंने अप्रोच को थोड़ा क्या किया, चेंज किया। सो इट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। Now the constitution came into force on 26 January 1950. Subsequently, the planning commission was set up on 15 March 1950. तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आया इनटू फोर्स, एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट करीब करीब 2 महीने बाद ही 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन सेटअप कर दिया गया। एंड द प्लान एरा स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951. The 1 April 1951 was a day on which the first 5-year plan was launched. So the planning commission was there. Planning commission was set up on the March 1950, and the responsibility of planning commission was to make the 5-year plans for India. The 5-year plans for India. So first 5-year plan was started from 1st April 1951 with the launching of the first 5-year plan 1951 to 56 for 5 years. Now, the long-term objectives of 5-year plans in India. What are the usual long-term objectives? Long-term के क्या objectives है? Which are general objectives. These are general goals. High growth rate to improve the living standard of the resident of India. Now, high growth rate in the GDP. High growth rate means GDP, gross domestic product. When the growth rate will be high, it means somewhere all the sections of society will reap the benefit of that, will definitely reap the benefit of that, because growth will be possible only when the overall production process is taking place, and the overall production of the all the industries is proliferating, the number is proliferating. Okay, in that case, definitely if they are producing more, it means there is a proper demand, the consumption would be there, then they will generate more products, and in order to generate more products, they need more people to work in their factories, in their
in their industries, so they will hire more. So automatically unemployment कम हो जाएगी, तो growth का असर जो है वो unemployment पे पड़ेगा, poverty पे भी पड़ेगा. So the high growth rate to improve the living standard. Poverty unemployment कम रहेगा तो living standard automatically क्या होगा, uplift होगा. Economic stability for prosperity. Now economic stability for prosperity. You need economic stability. Why economic stability? Means you need macroeconomic stability. Macroeconomic indicators should be in line. They all must fall in line according to your needs. So that will ultimately create the prosperity in the country. So economic stability should be there. All the macroeconomic indicators, like what are the macroeconomic indicators? Some of that is GDP is there, inflation is there, the investment, the saving, the capital, all these things. These are macroeconomic indicators. They must be in the range, so they can be considered as stability. We can assume the economic stability. Self-reliant economy means most of the sectors should rely on itself for all the things. All the things means जो भी उनकी नीड है, इधर वो रॉ मटेरियल है या जिस भी चीज का नीड है, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब इंडस्ट्रीज तो है ही, बट अदर सेक्टर्स भी हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो सर्विस सेक्टर है, और पीपल जो है, सारे लोग जो कंज्यूमर है, इस पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमको सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है. उसी को कहेंगे सेल्फ रिलायंट, कि हाँ खुद पर ही डिपेंडेंट है और मोस्ट ऑफ चीजें जो है हमें हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर मिल पा रही है. Social justice and reducing the inequality. Now social justice is nothing but the distribution from the authoritative side. अथॉरिटी की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड सर्विसेज का, और ये जो भी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बनेंगे, those should be just. Just means that equi distribution should be there. Equi distribution in the sense कि हमको ये इंश्योर करने का कि सबको सेम रिसोर्सेज मिले जरूरी नहीं है, बट सबको इतने रिसोर्सेज मिले कि वो सेम रिजल्ट तक पहुंच सके. हमने एक बार डिस्कस किया था इसको. That will be the part of social justice. And reducing the inequality. Inequality should be reduced. Okay. Inequality reduction तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. मॉडर्नाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम के साथ चलेंगे तभी आप ग्रोथ को उस लेवल पे ले जा पाएंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नए नए मेथड्स लाने पड़ेंगे. सो दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स ये आज भी है, ये ऑब्जेक्टिव्स आज भी है. ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है तो इसको कहें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. मीन्स ये गोल्स हैं आपके. ठीक है. Now, the idea of economic planning for 5 years was taken from the Soviet Union under the socialist influence of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. So, Pandit Jawaharlal Nehru was neutral at that time. जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था वो नेम का था, नॉन अलाइंड मूवमेंट. मीन्स इंडिया was not willing to join any of the bloc, whether that is a socialist bloc or capitalist bloc. But the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, at that time had the socialistic leaning. सोशलिज्म में एक बिलीव था उनका. तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, एंड ही विजिटेड सोवियत यूनियन सो मेनी टाइम्स. सो ही हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ सोवियत यूनियन, एंड द 5-year plan were already going on in the Soviet Union. So he was impressed with those plans, and in India he also recommended that we must go with the 5-year plans. So it was the idea of the Soviet Union. India adopted this. The first 8 5-year plan in India, first 8 5-year plans in India emphasized on growing the public sector. So initially the socialist idea was there, and socialism says that government sector should be there, private sector should not be allowed. So initially, after post-independence, the planning process was going on in such a manner that the public sector will thrive. Public sector means those enterprises which have the public ownership will thrive, and all the major industries will be covered by them only, and private people were not allowed in so many sectors, and the ease of doing business was not there. Those private people who had capacity to, who had enough resources to do the business, were also struggling at that time, because licensing system was there, licensing raj was there. The gestation period was very much, like 5-6 years तो है, लाइसेंस लेने में लग जाते थे. तो प्राइवेट प्लेयर के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं उस समय. तो सोशलिस्टिक पैटर्न था, तो पब्लिक सेक्टर enterprises were thriving and government was focusing on them only. So all the major means of production was held by the public offices. So initially for almost 8 5-year plans, almost 45 years in India emphasized on growing the public sector,
with huge investment in heavy and basic industries. So in heavy and basic industries, government invested and the public sector enterprises were there. But since the launch of 9th five-year plan in 1997, so it was post 1991 crisis. Keep in mind, post 1991 LPG liberalization, privatization, globalization. It means economic structure India का change हो गया था, economic reform आ चुके थे. So initially in first 8 5-year plans, India was focusing on the public sector only. But after the 9th five-year plan, the attention has shifted towards making government a growth facilitator. Now government is not at the center point. Government was becoming the growth facilitator. Now private people were allowed, FDI was allowed. So all the private players were started impacting the market and the government regulations जो है वो बहुत इजी हो गए. तो गवर्नमेंट का काम जो है ना वो ग्रोथ फैसिलिटेटर का हो गया. मतलब अब आपको ग्रोथ फैसिलिटेट करनी है, आपको प्राइवेट सेक्टर को और अदर सेक्टर को क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है, ताकि आप ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव कंडीशन बनानी है, गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना है. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चले गए, ऐसा नहीं था. बट कहीं ना कहीं इंडिया जो है ये जो सोशलिज्म टेंडेंसी थी उससे थोड़ा थोड़ा फ्री मार्केट की तरफ इंडिया आया. ठीक है, तो मिक्स्ड में पहले लीनिंग सोशलिज्म की तरफ थी इंडिया की. ये 1997 के 5-ईयर प्लान के बाद या 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया की जो लीनिंग थी वो कहाँ हो गई, थोड़ी सी कैपिटलिज्म की तरफ हो गई. ठीक है, और वो कंडीशनल लीनिंग थी, वो हम पढ़ चुके हैं एलपीजी में क्या होता है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि 9th five-year प्लान से इंडिया गवर्नमेंट ग्रोथ फैसिलिटेटर हो गई. The Planning Commission was a Government of India agency whose primary responsibility was to develop the country's 5-year plans. The primary responsibility was the 5-year plans. The concept was inspired by Joseph Stalin's 5-year plan. Stalin का प्लान था 5 ईयर का, which was adopted in the Soviet Union in the late 1920s. तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ये 1917 के बाद ये जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर में ये 5-ईयर प्लान अडॉप्ट किए. ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का फोटो है. ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की मीटिंग है. कैन यू रिकॉग्नाइज द पीपल? एनीवन? कोई तो पहचानो किसी को. मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर. पिक्चर बहुत छोटा पिक्चर है. बहुत छोटा है. ओके ओके, पिक्चर को बड़ा कर दें. ओके, ये लो. नाउ मैं भी 2 ही लोगों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ इसमें. कोई बताएगा? नहीं. सर नहीं पहचानता मैं किनको किनको. ओके ओके, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत है एंड ही इज मेघनाथ साहा. दिस 2 पीपल आई कैन रिकॉग्नाइज एंड बाकी लोगों को मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ. ओके, सो प्लानिंग कमीशन का थोड़ा हिस्ट्री समझ में आया कि इन्फ्लुएंस जो था कहाँ से कहाँ आया. सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस में हमने 5-ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए. ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स तक इंडिया उन्हीं प्लान्स के साथ चला, पब्लिक सेक्टर पे फोकस था. बट उसके बाद इंडिया शिफ्ट हुआ किस पर, थोड़ा सा कैपिटलिज्म की. ऐसा नहीं बोलना है कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो, थोड़ा लीनिंग हुआ उस तरफ. और लीनिंग वो कंडीशनल थी बिकॉज इंडिया के पास फॉरेक्स खत्म हो गया था, एलपीजी आप जान ही रहे. नाउ इन 1938 Meghnad Saha, who was an Indian astrophysicist who developed the Saha ionization equation and the former member of parliament. He was the member of parliament. Urged Netaji Subhash Chandra Bose, the Congress president at that time.
In 1938, Congress president was Subhash Chandra Bose. In 1939, I think he was resigned. Na? 39, I think. So Netaji Subhash Chandra Bose, the Congress president at that time, to form a national planning committee. So the Meghnad Saha recommended, urged Netaji Subhash Chandra Bose, who was the Congress president at that time. So Congress president मतलब वही हो गया कि उस समय की सबसे बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था. तो Subhash Chandra Bose was the Congress president. So Meghnad Saha insisted him that we must form a national planning committee so we can make plans for, the prospective plans for the economy. Bose with Atul Tiwari and the Pandit Jawaharlal Nehru. Nehru was, key figure in the INC. We are all aware. So Bose with the Atul Tiwari and the Pandit Jawaharlal Nehru founded rudimentary economic planning in 1938. Rudimentary means very basic planning. एक बहुत बेसिक प्लानिंग का स्केलेटन उन्होंने 1938 में बनाया. The head of the planning committee, the head of this planning committee was Sir Mokshagundam Vishwesvaraya. That is MV sir. Sir MV Vishwesvaraya जो है, जान ही रहे हैं आप लोग, M Vishwesvaraya, commonly known as Sir MV, an Indian civil engineer and the 90th Diwan of Mysore. I think MV Vishwesvaraya के बर्थडे पर ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. सही है? Yes sir, yes sir. 15th September, I think. 15th September. Probably sir, मुझे श्योर नहीं पता. हाँ, ओके. हिंदी दिवस होता है 14 को, एंड 14 के बाद नेक्स्ट डे इंजीनियर्स डे होता है. एंड इनके नाम पर ही आई थिंक जो NIT है नागपुर में, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है. तो ही वॉज अ सिविल इंजीनियर एंड 90th Diwan ऑफ मैसूर. सो ही वॉज द, ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी ध्यान रखना, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी है थोड़ा पोर्शन. तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी, ये आपको पता चलेगा कि INC ने बनाई थी. मेघनाथ साहा ने रिकमेंड किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे उस समय, 1938 में बनाई थी इन्होंने. और जो रुडिमेंटरी इकोनॉमिक प्लानिंग 1938 में जो अतुल तिवारी और ये लोग थे, पंडित नेहरू एंड बोस, एंड सर विश्वेश्वरैया वाज द head of this planning committee. In addition, the British government also established advisory planning board. Now, National Planning Committee was established by the Indian National Congress. The advisory planning board was established by the British government, led by K.C. Niyogi. K.C. Niyogi, who was an Indian politician of the time from the West Bengal. K.C. Niyogi. Kshitish Chandra Niyogi. Yes, Kshitish Chandra Niyogi. K.C. Niyogi. The board was operational for 2 years from 1944 to 46. तो 44 से 46 तक ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था. केसी नियोगी, क्षितिश चंद्र नियोगी वाज द हेड ऑफ दिस एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड. तो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ये मॉडर्न हिस्ट्री में डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है, याद रखें. तो 2 साल तक ये बोर्ड ऑपरेशनल रहा. अल्टीमेटली इन मार्च 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन, वो अभी देखा अपन ने 15 मार्च को बनाया था 1950 को, मार्च, to play a significant role in societal and economic transformation in accordance with the directive principle of state policy. DPSP के अकॉर्डिंग, DPSP जान रहे हो आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, गाइडेंस है स्टेट के लिए कि आपको क्या क्या चीजें फुलफिल करनी है, एस्पिरेशनल एस्पेक्ट्स हैं उसमें जो DPSP है. तो DPSP के अकॉर्डिंग जो है आपको प्लानिंग कमीशन को एक मैंडेट दिया गया कि उनको काम करना है. नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दीज पीपल. आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ इनको पहचान सकते हैं आप लोग. यस सर, ये तो फर्स्ट से सेकंड तो जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस. फर्स्ट से आपने मेघनाथ शाह कहा ना? यस, मेघनाथ साहा. सर लास्ट में क्या राजेंद्र प्रसाद है? वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. ही इज सर विश्वेश्वरैया है. ओके, सॉरी सर. इज दीवान ऑफ मैसूर एट दैट टाइम. तो ये मेघनाथ साहा देखो यहाँ बैठे हुए, दिख रहे? Is here also. Now, the planning commission's composition had a significant change from its inception. तो composition इसका शुरू से लेके अब तक थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहा है. तो कोई strict composition नहीं था, बट एक outline जरूर है. तो प्लानिंग कमीशन इंटरनल स्ट्रक्चर्स आउटलाइन बिलो. अब प्लानिंग कमीशन जो है वो तो अब ऑब्सक्यूर हो चुका है. ऑब्सक्यूर मतलब क्योंकि 14 में अबॉलिश हो गया था, तो 8 साल करीब अबॉलिश हो गए, उसको 8 साल पहले अबॉलिश हो गया. बट स्टिल उसका रिलेवेंस है, बिकॉज एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस उन्होंने किया है. तो डेफिनेटली अभी करंट जो प्लानिंग प्रोसेस है, उस प्लानिंग प्रोसेस में जो भी नीति आयोग करता है, उस नीति आयोग के करने में डेफिनेटली आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए प्लानिंग की. तो आप एक बेटर
प्लानिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री शुड बी सॉरी, हाँ, हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। द चेयरमैन, नाउ प्लानिंग कमीशन की बात करूं, प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसके चेयरमैन कौन होता था? प्लानिंग कमीशन वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते थे प्लानिंग कमीशन को, चेयरमैन वही होते थे। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर ओनली अटेंडेड द प्लानिंग कमीशन मोस्ट क्रिटिकल मीटिंग, बहुत क्रिटिकल मीटिंग से अटेंड करते थे, बाकी जो अदर मेंबर्स थे वो करते थे। डेप्यूटी चेयरमैन यूजुअली डे टू डे ऑपरेशन संभालते थे, और डेप्यूटी चेयरमैन नॉर्मली कौन होता था? रूलिंग पार्टी का ही कोई मेंबर होता था, कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री या मतलब कोई भी जो भी रूलिंग पार्टी को एक परफेक्ट पर्सन लगता था, डोमेन एक्सपर्ट लगता था, उसको वो बना सकते थे। यूजुअली ये रूलिंग पार्टी से ही रहता था। मेंबरशिप में ये होता था कि एक फुल टाइम मेंबर्स होते थे, फुल टाइम मेंबर्स में आपको बोलेंगे इमिनेंट पब्लिक फिगर्स, जो फेमस पर्सनैलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर, जो कुछ आईएएस ऑफिसर्स, बड़े आईसीएस ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट हो सकते थे, फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सिग्निफिकेंट कैबिनेट मिनिस्टर, काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर को भी इसमें क्या दिया जाता था? रोल दिया जाता था, बिकॉज प्लानिंग करनी है ना, तो ये उसकी मेंबरशिप होती थी। अब आप देखोगे कि डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरपर्सन एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये तो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर जो भी रहेगा वो चेयरमैन रहेगा, पर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं रहता था हर समय, और डेप्यूटी चेयरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती थी, बिकॉज वही डे टू डे ऑपरेशन और सारे उसके कंडक्ट देखते थे, तो बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। डेप्यूटी चेयरमैन आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आपको देखने को मिलेगी। रिसेंटली 14 तक, क्योंकि 14 में प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गया था, तो 14 से मतलब 2004 से लेके 14, जो लास्ट 10 इयर्स जो यूपीए का टेन्योर था, यूपीए 1 यूपीए 2, उस समय मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो थे वो उसके डेप्यूटी चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के। उसके पहले केसी पंत, जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह है जो कि राजस्थान के बाड़मेर से आई थिंक सांसद रहे हैं, और बीजेपी के मेंबर थे, और उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, एट दैट टाइम ही वाज द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। Madhu Dandavate, then Pranab Mukherjee, you can see Pranab Mukherjee, the ex-honorable president of India, 91 से 96 तक, उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। मोहन धारिया, देन दंडवते, हेगड़े जी, ये पी शिवशंकर, मनमोहन सिंह, 85 to 87, Dr. Manmohan Singh was deputy chairperson. Then PV Narasimha Rao, Narasimha Rao was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे बाद में, बट 84-85 के टाइम पे वो डेप्यूटी चेयरमैन थे। Then you can see C. Subramaniam and all these. गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर भी बने थे इंडिया के, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती थी। तो लास्ट वाज द मोंटेक सिंह आहलूवालिया। नाउ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन जब बना था उसके 2 साल बाद, ठीक है, उसके 2 साल बाद गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाई थी, बिकॉज अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सिनर्जी नहीं बन पाई थी। स्टेट गवर्नमेंट को भी तो डोमेन में लेना था ना, स्टेट्स को भी स्टेट की बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज फाइनेंसेस में भी प्लानिंग कमीशन का क्या था? एक रोल था, स्टेट्स को कितने फाइनेंसेस प्रोवाइड होंगे वो भी रोल था। जैसे आज जो फाइनेंस कमीशन जो हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी पूल डिसाइड करता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन बताएगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी बताएगा, फाइनेंस कमीशन हमने देखा था। यहाँ पे ये था कि प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता था कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो सेंट्रल डिविजिबिलिटी पूल की जानकारी कौन देता था? मतलब उसमें उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लानिंग कमीशन का। तो स्टेट गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज और म्यूचुअल सिनर्जी बनाने के लिए एक बॉडी जरूरत थी, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये 1952 में बनाई गई थी, 6 अगस्त 1952 को। द ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑफर स्ट्रेंथ एंड mobilize the nation's effort and resources in support of plan to promote shared economic policy in all critical fields and to ensure that rapid development of all parts of country was balanced. So main इसका काम था कि ये मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ अदर डिफरेंट सेक्टर्स थे, उन सेक्टर्स के बीच में सिनर्जी बनाना इसका काम था, ऐसा समझ के चलो। और जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है उस पर भी इसकी एक क्या होती थी, एक रोल इसका प्ले करना होता था। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से 1952 में बना, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही ये स्टेटरी बॉडी थी। और एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत पावरफुल बॉडी थी। इस बॉडी को प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हुआ, उसके साथ साथ ये भी क्या हो गई, अबॉलिश हो गई, तो एनडीसी भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्लानिंग कमीशन और ये एनडीसी जो है को टर्मिनस है, ऐसा समझो, ठीक है, दोनों एक साथ ही अबॉलिश हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी था, स्टेटरी नहीं था। इसका कॉम्पोजिशन क्या है कि एनडीसी का हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स ऑल यूनियन मिनिस्टर। तो यूनियन मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो ऑटोमेटिकली एनडीसी की पार्ट हो जाती थी, मतलब
प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट पूरी, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को क्या है उस एनडीसी का पार्ट होते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के जितने मेंबर होते थे वो सारे ऑटोमेटिकली एनडीसी के क्या हो जाते थे, मेंबर हो जाते थे। और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। तो ये एक एनडीसी बहुत बड़ी एक बॉडी हो जाती थी। एनडीसी क्या हो जाती थी, एक बड़ी बॉडी हो जाती थी। और एनडीसी में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था वो होता था कि स्टेट्स के साथ कॉपरेशन करना और स्टेट के इश्यूज वहां पे उस पर बातचीत होती थी कि प्लानिंग प्रोसेस में किस स्टेट को कितना पैसा क्या जरूरत पड़ेगा, वो सब पे वहां डिस्कशन होता था। तो एनडीसी ये बॉडी थी। और एनडीसी भी अभी नहीं एग्जिस्ट करती, अबोलिश हो गई 2014 में। तो कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स आपको देखना है, ठीक है। तो इस बॉडी का भी मोर और लेस प्लानिंग कमिशन के साथ वैसा ही काम था, ठीक है। चले, अबोलिश हो चुकी है हम लोग। एबोलिश क्यों हुआ था? अबोलिश इसीलिए हुआ बिकॉज प्लानिंग कमीशन और ये दोनों एक साथ ही बनाई गई थी, साथ में, मतलब वही स्टेट्स को क्या बोलते हैं, स्टेट से सिनर्जी लेने के लिए। तो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों सिनर्जी से काम करते थे और अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, ठीक है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, प्लानिंग कमीशन का जो काम करने का तरीका है ट्रिकल डाउन वाला, वो अब ऑब्सक्यूर हो चुका है और हमको अब थोड़े नए सिरे से क्या करना चाहिए, प्लानिंग प्रोसेस करनी चाहिए। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को एबोलिश किया, तो उससे जुड़ी हुई बॉडी एनडीसी, इसको भी एबोलिश कर दिया। इसलिए उन्होंने नीति आयोग बनाया और नीति आयोग में एनडीसी जैसा ही सेटअप नीति आयोग में भी है कि सारे स्टेट्स के मेंबर हैं, ठीक है। बस वो है कि उसका काइंड ऑफ कि उसका नेम चेंज करके उसका थोड़ा उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया है। तो प्लानिंग कमीशन एबोलिश हो गया और नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग भी वही काम करता है जो प्लानिंग कमीशन करता है, बस वो 5 ईयर प्लान एबोलिश हो गए। अब नीति आयोग का एक अलग तरीका है, एक थिंक टैंक है जो अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एनडीसी तो एसोसिएटेड थी प्लानिंग कमीशन के साथ, तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व किया तो एनडीसी को भी डिसॉल्व कर दिया। एनडीसी को रख के क्या करते हैं फिर, ठीक है, उनको नीति आयोग बना दिया उन्होंने, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब देखो थोड़ा सा सारे प्लान हमको रट्टा नहीं मारने कि किस किस प्लान में क्या हुआ था, बट हाँ थोड़े बहुत प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं, तो हमको थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्लानिंग प्रोसेस में कैसे कैसे काम हुआ। तो हम 5 ईयर प्लान्स 1951 से 2017 तक चले। 17 तक इसलिए चले क्योंकि लास्ट वाला 5 ईयर प्लान जो था ना वो 17 तक चला। एबोलिश उन्होंने उसको पहले कर दिया था, बट उसका जो लास्ट प्लानिंग कमीशन का एबोलिश होने के पहले जो लास्ट प्लान था वो 12 में आ गया था 2012 में। तो 12 से 17 तक उसको चलना था। तो 14 के प्लानिंग कमीशन के एबोलिश होने के बाद भी अगले 3 साल तक उसको 17 तक उस प्लान को माना गया, ठीक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 1951 से लेके 56 तक चला, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पहले देखो। ऑब्जेक्टिव है रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। नाउ उस समय 1951 में रेफ्यूजी क्राइसिस तो चल रहा था, सिटीजनशिप पे भी अभी तक दिक्कतें आ रही थी, सिटीजनशिप पे एक्ट नहीं आया था अभी तक, सिटीजनशिप पे डिस्कशन चल रहे थे पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन से क्या हो रहा था, पीपल का मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा था इधर से उधर, पाकिस्तान की तरफ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में अभी तक दिक्कतें चल रही थी। तो रिफ्यूजीज का बहुत इशू था, उस रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज को हमको सेट करना था। तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस था बिकॉज फूड सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय। इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था और इंडिया के पास पैसा था नहीं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस इंडिया को करना था। और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन उस समय क्या थी, बहुत ज्यादा थी। उस समय बहुत ज्यादा पैरामीटर्स और डेटा अवेलेबल नहीं थे, बट स्टिल इन्फ्लेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी, फूड कमोडिटीज वगैरह बहुत महंगी थी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी एक बड़ा चैलेंज था। आज तो बहुत चीजें सिस्टमेटिक चल रही है, आपको पता है क्या कंट्रोल करना है क्या नहीं करना है, बहुत डेटा अवेलेबल है। उस समय तो आप जस्ट क्या हुआ, आपको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो आपको पता नहीं था चीजें कैसे करनी, मतलब करनी कैसे ही आपको पता था, बट आपके पास बहुत इफेक्टिव डेटा अवेलेबल नहीं था। तो ये जो पूरे ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, इसको जिस मॉडल पे ये चला उसको कहते हैं हेरोड डोमर मॉडल। क्या बोलते हैं, हेरोड डोमर मॉडल, ये याद रखना। और हेरोड डोमर मॉडल कहता है कि आपका प्राइमरी फोकस जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर पे होना चाहिए, मतलब मेन फोकस किस पे होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में, रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये हेरोड डोमर मॉडल है, ठीक है। असेसमेंट इसमें हुआ क्या था, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव मोर और लेस अचीव्ड। मोर और लेस अचीव्ड मतलब रिफ्यूजीज के रिहेबिलिटेशन पे भी काम हुआ, गवर्नमेंट ने किया। फूड सेल्फ सफिशिएंसी पे भी हम थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि हमने पूरा कर दिया, पर नहीं बढ़े हम आगे। पूरा तो हम तब बढ़े जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इन्फ्लेशन को भी हमने काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी और करा। तो टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव मोर और लेस अचीव्ड,
मतलब 1956 तक मोर और लेस करीब करीब हमने अचीव कर लिए विद एन एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर। एक्टिव रोल ऑफ स्टेट बिकॉज हम थे तो सोशलिस्टिक लीनिंग वाली, तो रोल ऑफ स्टेट का था अभी तक इकोनॉमिक स्फेयर में। और हेरोडोमर मॉडल, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है, ये वाला जो प्लानिंग प्रोसेस का ये वाला जो पूरा स्लाइड है ना, ये पूरा पीपीटी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सारी चीजें डाल दी गई मोस्टली। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक सेकंड 5 ईयर प्लान आया। इसमें पहले इसके ऑब्जेक्टिव देखो, नेहरू माइलोनोबिस मॉडल, तो ये हेरोडोमर मॉडल को अब इसमें आपने छोड़ दिया और नया मॉडल आया, दैट इज नेहरू माइलोनोबिस मॉडल। इस नेहरू माइलोनोबिस मॉडल में क्या हुआ ना, ये मॉडल ये कहता है कि आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए ना, फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड का मतलब होता है कैपिटल गुड्स। किस पे? कैपिटल गुड्स। मतलब आपको हेवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो आपका मेजर जो फोकस आया गवर्नमेंट का वो आया अब हैवी इंडस्ट्री पे, कि आप हैवी इंडस्ट्री पे क्या करो, काम करो। हैवी इंडस्ट्री पे काम होगा, कैपिटल गुड्स बनेंगे और कैपिटल गुड्स से अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोसेस से लेबर इंटेंसिव भी है रहेगा, तो कहीं ना कहीं लेबर को भी क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट देगा। तो हेरोडोमर मॉडल ने तो कहा था कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करो, और नेहरू माइलोनोबिस मॉडल ने कहा था कि आप कैपिटल गुड्स पे फोकस करो। प्रीलिम्स में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, मैथ्स पे कॉलम भी आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग ये सब में क्या? हाँ, हेवी इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या करो? फोकस करो, ताकि आप क्या कर पाओ ओवरऑल। इन्वेस्टमेंट गुड्स का मतलब यही होता है, कैपिटल गुड्स मतलब अल्टीमेटली जो कैपिटल आपका बनेगा वो एक तरीके का क्या है? इन्वेस्टमेंट ही है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल बनाएगा, गुड्स बनाएगा, और कैपिटल गुड्स जो बनेंगे वो एक तरीके का आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि वो फ्यूचर में क्या करेगा? प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? वाइस वर्सा, एक तरीके से, कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो, बिकॉज वो वापस क्या करेगा? प्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम देगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेरोडोमर मॉडल गया, हेरोडोमर मॉडल में आपने क्या कहा? प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करो, एग्रीकल्चर पे। सेकंड में आप नेहरू माइलोनोबिस पे गए, इन्होंने कहा कि नहीं, आप कैपिटल गुड्स पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट गुड्स पे, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब आपने कैपिटल गुड्स पे फोकस किया तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज वही बीएचईएल और ये सारी जो एंटरप्राइजेस थे उनको बनाया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एक्सेप्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज अ गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है 1956, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कहा कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी रखो और इकोनॉमिक पॉलिसी में पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न चलेगा। मतलब पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? थ्राइव करेगा, और पब्लिक सेक्टर विल डिसाइड कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे पास रहेंगे, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी असेसमेंट देखो, इसका इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फुली। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और ये सब जो इन्होंने चलाए गवर्नमेंट ने, इन सब में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहेगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे ना, और आपको कई सारी चीजों में इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, आपको फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर नहीं पाओगे, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से ये जो प्रोग्राम था इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। ये ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बहुत ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाया। टारगेट हैड टू बी रिड्यूस्ड, मतलब जो टारगेट बनाया था गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करना पड़ा। मिड टर्म में, एंड में रिड्यूस कर दिया कि नहीं, इतना नहीं अचीव कर पाएंगे, उससे कम कर लेंगे, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और कैपिटल गुड्स पे था, ठीक है। तो फर्स्ट और ये सेकंड देखो, ये 10 साल कंटिन्यू 2 5 ईयर प्लान चले, इनके ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान देखो 61 से 66 में चला। ये इसमें सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट मतलब वही है कि आपको पता था कि आपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंसी पे अब जाना था, एग्रीकल्चर में जाना था, फूड सेक्टर में जाना था सेल्फ सफिशिएंसी पे। और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ जनरेटिंग वही है कि आपको एक विशियस इकोनॉमिक साइकिल बनाना था, ताकि आपकी जो एग्जैक्टली नीड्स है, जो कंजम्पशन नीड्स है, वो प्रोडक्शन से पूरी हो पाए और एक प्रॉपर साइकिल बने, ताकि पॉवर्टी भी एलिवेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी ये ऑब्जेक्टिव था। बट ये थर्ड 5 ईयर प्लान इज एब्जेक्ट फेलियर। वॉर एंड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब वही है कि आपको मानसून अच्छा नहीं रहा, मानसून अच्छा नहीं रहा तो आपका मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रहा था, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं रहा, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं रहा तो सेल्फ रिलायंट होने वाला जो गोल था वो तो अचीव होना ही नहीं है। तो ड्रॉट हो गया,
पहली बात, एंड वॉर। अब आपको पता है इसमें कौन सा वॉर हुआ था? 61-66 के बीच में 2 वॉर हो गए। 62 में चाइना वॉर हो गया और 65 में पाकिस्तान वॉर हो गया। तो 2 वॉर हो गए, तो दोनों वॉर आर ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, तो इन्फ्लेशन भी आ गया। येट पंचायत इलेक्शंस वर स्टार्टेड, तो इंडिया में पंचायत इलेक्शन स्टार्टेड हो गए, ठीक है। वो एक बड़ा अचीवमेंट ही मान सकते हो। 1958 में फर्स्ट, आई थिंक 1959 में, आई थिंक ना, फर्स्ट वाज इन द नागौर राजस्थान में, आई थिंक पंचायती राज स्टार्ट हुआ इंडिया में। और फिर धीरे धीरे इलेक्शंस वगैरह जो है वो बाद में इस 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्टार्ट हुए। तो इस 5 ईयर प्लान में आप देख सकते हो कि एक फेलियर था, और फेलियर का रीजन है कि वॉर हो गए, और वॉर में आपको पता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा उधर खर्च करोगे तो सेल्फ सफिशिएंसी कहां से आ पाएगी, और ड्रॉट हो गया, मानसून ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। अब आप 66 के बाद आप यहाँ पे चीज देखोगे कि ये प्लान हॉलीडे है, मतलब 66 से लेके 69 के बीच में 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया। पॉलिटिकल क्राइसिस भी थी, और आपको पता है कि 62 में चाइना वॉर हो गया, 64 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, देन लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और 1 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी, उस पार्टी में, आईएनसी में, एक इंटरनल केओस हो गया कि हु कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। तो वो मोरारजी देसाई, और एक फैक्शन जो था वो मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहा था, और एक फैक्शन जो था वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहा था। तो 2 फैक्शन बन गए थे, कांग्रेस का बाइफर्केशन हो गया था, तो उसमें फिर एक केओस हो गया था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है उस हिसाब से नहीं हो पाई उस बीच में। तो उन्होंने कहा कि 5 ईयर प्लान नहीं हम बना पा रहे, और ये वॉर और ड्रॉट की वजह से ये भी प्रीवियस प्लान भी फेलियर था। तो फिर एनुअल हॉलीडेज, मतलब एनुअल प्लान्स पे गए कि 1-1 साल का प्लान बनाओ, पूरे प्लान मत बनाओ। तो इन 3 सालों में 5 ईयर प्लान नहीं बना, ध्यान रखना। तो न्यू क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज रिक्वायर्ड अटेंशन। फूड शॉर्टेज हुआ ही था उस समय, फूड शॉर्टेज इसी समय क्या बात है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आया, HYV आए, तो HYV आने से धीरे धीरे चीजें ठीक हुई। तो एग्रीकल्चर और फूड शॉर्टेज जो थी, इसको हमको रिड्यूस करना था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव है ना, इस तरफ ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज इंप्लीमेंटेड। इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो अल्टीमेटली ग्रीन रिवोल्यूशन वाला सारा काम जो है ये इस वाले जो एनुअल प्लान्स में हो गया, इस 66-69 के बीच में। इससे ये जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई HYV से, ठीक है। अब आता है 69 के बाद, 69 से 74, ये जो 5 ईयर प्लान बना, 4th 5 ईयर प्लान। इस 4th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हमारा टारगेट था कि ग्रोथ करना है, हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में आ गई है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ग्रोथ लानी है स्टेबिलिटी के साथ, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। वापस सेल्फ रिलायंस पहले नहीं कर पाए थे, बट अब फूड शॉर्टेज थी नहीं, HYV से हमारा जो बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा, तो हम अब ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस भी चाहिए। हुआ क्या, एम्बिशियस था बट फेलियर रहा। 69-74 अचीव्ड ग्रोथ ऑफ 3.5% बट वाज मर्ड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, और ग्रोथ हमने 3.5 अचीव करी, जबकि ग्रोथ हम ज्यादा चाह रहे थे, एंटिसिपेशन ज्यादा था, फोरकास्ट ज्यादा करा, बट इतना हुआ नहीं। तो जितना चाह रहे थे उतना नहीं हुआ, और ग्रोथ भी कम रही, और इन्फ्लेशन मार्केट में रही। इन्फ्लेशन मतलब वही कि इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सिनर्जी नहीं रही ना, मॉनेटरी और फिजिकल एस्पेक्ट में सिनर्जी नहीं रही, और अदर रीजंस तो दिख ही रहे हमको। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स। आपको पता है 69 में नेशनल बैंक का 14 बैंक्स का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, हम पढ़ चुके हैं इसको। एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया एडवांस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ हो गया था इंट्रोड्यूस धीरे धीरे, बट एक प्रॉपरली बड़ा व्यापक स्तर पे कहे कि तो इस 4th 5 ईयर प्लान में आया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, बट ये फेलियर ही था, बिकॉज हमारे एंटिसिपेशन ज्यादा था, उतना हुआ नहीं, और इन्फ्लेशन तो थी। 5th 5 ईयर प्लान 74 to 79, इसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इसी में जो इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ वाला नारा, तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी एलिवेशन था मेन, पर इसमें असेसमेंट इसका ये रहा कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो पुअर लोगों को दिक्कत होगी। was terminated by the जनता गवर्नमेंट, yet the Indian National Highway System was introduced for the first time। अब इसमें आप देखोगे कि बीच में इमरजेंसी वगैरह लग गई थी 75 में, ठीक है। फिर बीच में 77 के टाइम पे जनता दल की गवर्नमेंट भी बन गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी बीच में,
तो ये जो टर्मिनेशन भी हो गया इस प्लान का, तो वो ये कि पॉलिटिकल क्राइसिस चलने की वजह से ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, तो ये वाला प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। 6 5 ईयर प्लान 80 से 85 में बना। 80 से 85 मैंने डायरेक्ट अटैक ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये इसमें शायद उन्होंने वो दिया था गरीबी हटाओ का नारा, बाय क्रिएटिंग कंडीशन फॉर एक्सपांडिंग इकोनॉमी, मोस्ट टारगेट्स अचीव्ड, फैमिली प्लानिंग वाज आल्सो एक्सपांडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। तो गरीबी हटाओ का जो नारा आया ना इसमें, इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो गया था 84 में, बट मोर और लेस इसके टारगेट काफी हद तक क्या हुए, अचीव हुए। पॉवर्टी में काफी लेवल तक रिडक्शन आ गया। फिर इसके बाद 85 to 90 में ये 7th 5 ईयर प्लान है। इसमें एम्फेसिस ऑन पॉलिसी प्रोग्राम दैट वुड एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। ग्रोथ रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट रिलेट रहेगा, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। अब ग्रोथ रेट 6% तक गई। दिस प्लान वाज प्रूव्ड सक्सेसफुली प्रूव हुआ इन स्पाइट ऑफ सेवरल ड्रॉट कंडीशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर कंसेक्यूटिवली। ड्रॉट भी था बट स्टिल ये प्रूव हुआ बिकॉज अदर सेक्टर्स में धीरे धीरे क्या हुई, ग्रोथ हुई। फिर आप देखोगे कि 90 में खत्म होने वाला था, बट 89 91 में ये भी क्राइसिस चल रहा था। नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यही वही मंडल का वो पॉलिटिक्स भी चल रहा था उस समय, और केसेस भी वो सब चल रहे थे। पॉलिटिकल क्राइसिस था कंट्री में कुल मिला के, ऐसा समझो। नरसिम्हा राव, ये जो बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, देन नरसिम्हा राव बिकेम प्राइम मिनिस्टर, बीच में चंद्रशेखर भी रहे थे। तो बिगिनिंग ऑफ एलपीजी की बिगिनिंग हो गई, प्राइवेटाइजेशन, वो आपको पता ही है कि 1991 में क्राइसिस आया। उसके बाद आप देखेंगे कि 8th 5 ईयर प्लान जो 92 से 97 तक बना, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा टारगेट था वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अब सब बैलेंस बनाना, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था। पार्टली सक्सेसफुल रहा। एन एवरेज एनुअल ग्रोथ 6.78, अच्छी ग्रोथ आ रही थी अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.6। तो 5.6% 5.6 टारगेट था, बट ग्रोथ अच्छी हुई, ठीक है। इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ गई, और ये इसमें ये हो गया कि एफडीआई आने लगा था ना, बिकॉज 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो एफडीआई आने लगा, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ पता लगने लगा, तो चीजें ग्रो करने लगी। यहाँ तक आप देखो मोस्टली फोकस जो था सोशलिस्ट तक पैटर्न पे था। यहाँ पे आप देखोगे 9th 5 ईयर प्लान जो आया 97 से 2002, इस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर वाज अटल बिहारी वाजपेयी। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एम था। ग्रोथ टारगेट 6.5 था, टारगेट से हम कम ग्रो कर पाए 5.4, बिकॉज इसमें भी एक क्या हो गया था, वॉर हो गया था 99 में। क्या कौन सा वॉर हुआ था? पाकिस्तान, कारगिल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव हुई, सर्विसेज में ग्रोथ हमको अच्छी मिली, बट ओवरऑल जितना टारगेट था उससे कम मिली। फिर 2002-2007 तो ये प्लान जो बना, इसमें आप देखेंगे कि टू अचीव 8% जीडीपी ग्रोथ हमको अचीव करना था, तो 8% तक हमने क्या करा, करीब करीब अचीव भी करा, तो ये अच्छा ग्रोथ पीरियड था। फिर आप देखोगे कि 11th 5 ईयर प्लान 7 से 12, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ग्रोथ भी करनी बट इंक्लूसिव आपको, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। फिर एवरेज एनुअल जो है ग्रोथ करीब 8% रही, तो ये देखो ये ग्रोथ वाला पीरियड रहा था। इसमें जॉबलेस ग्रोथ भी रही थी, बताया था आपको, सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ओवरऑल ग्रोथ तो हुई, बट अनएम्प्लॉयमेंट रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जॉबलेस ग्रोथ हुआ। ये 11th 5 ईयर प्लान था 2012 में। और फाइनली 13th 5 ईयर प्लान जो आया 12 से 17 में, इसका टारगेट था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ग्रोथ रेट टारगेट वाज 8% था, और 8% तक तो हमने अचीव नहीं किया, कम अचीव किया, बट दैट वाज इट। ठीक है, ये 12th 5 ईयर प्लान था। इसके बाद खत्म हो गया 5 प्लान, इसके बाद खत्म हो गए। नीति आयोग 14 में पिक्चर में आ गया था। नीति आयोग का काम करने का तरीका प्लानिंग कमीशन से थोड़ा अलग था। डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन दिस 17 अगस्त 2014 को, एंड देन सेटिंग अप ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1st January 2015 is a major milestone in the planning process of the country. Setting up of Niti Aayog was a major step away from the command economy structure. Command economy structure था because public sector thrive कर रहा था. Adopted by India till 1991. The planning commission's top down model. Planning commission का top down था, trickle down expect कर रहे थे. Model of development had become redundant due to प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब वो कह रहे थे कि अभी की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये जो है, ये मॉडल क्या है, ऑब्सक्यूर है, इसकी जरूरत अब नहीं है, हमको चेंज करना चाहिए। एंड नीति आयोग अप्रोचेस इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ कंसल्टेटिव मैनर विद इनपुट फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड थिंक टैंक्स।
नीति आयोग ने एक कंसल्टेटिव मैनर में सारे स्टेट और थिंक टैंक से एक ओपिनियन लेके फिर जो प्रोसेस है प्लानिंग का उसको आगे बढ़ाया। सर एम विश्वेश्वरैया इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? कीप इन माइंड, एम विश्वेश्वरैया is a father of Indian economic planning, popularly known as Sir MV, was an engineer, और ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है। He is a father of Indian economic planning. Now just understand the Niti Aayog, National Institution for Transforming India. Niti Aayog Planning Commission were replaced by new institution Niti Aayog on this date with emphasis on bottom up approach. Now top down उनकी अप्रोच थी प्लानिंग की, ये बॉटम अप अप्रोच थी, मतलब नीचे से ऊपर तक हमको क्या करना है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ले जाना है। तो इट वाज काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू एनविसाज द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी ने कहा था कि एक अच्छी हुकूमत वही है जो सबसे कम हुक्म चलाए। बेस्ट गवर्नमेंट इज विच गवर्न्स लीस्ट, ठीक है। बेस्ट गवर्नमेंट इज विच गवर्न्स लीस्ट, एक अच्छी हुकूमत वही है सबसे कम हुक्म चलाए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ज्यादा अगर आपके ऊपर रेगुलेशन है और ज्यादा आपके ऊपर लिबर्टी आपकी कर्टेल की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ है इन द सेंस कि वो एक अच्छी गवर्नेंस नहीं बना पाएंगे, ऐसा कहने का मतलब है। तो विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब वही बात है कि गवर्नमेंट मिनिमम रहेगी, गवर्नेंस मिनिमम रहेगी। इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पे एक से ज्यादा सेंटर ऑफ पावर होते हैं। इंडिया जो है एक तरह की फेडरलिज्म का सेटअप है, बिकॉज स्टेट्स में अपना अपना क्या है, पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना पावर है। तो डिफरेंट सेंटर ऑफ पावर्स हैं इंडिया में, इसका मतलब इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। तो स्टेट के साथ आपको कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। तो स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जब कॉपरेट करके चलती है, सिनर्जी बना के वे फॉरवर्ड डिसाइड करती है, तो इसको कहते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। स्टेट के साथ कॉपरेट करके चलना, दैट इज कॉपरेटिव फेडरलिज्म। और डिटेल में आपको पॉलिटी वगैरह में बताएंगे, हम थोड़ा सा भी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग आप देख रहे हो, चेयरपर्सन अगेन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। करीब करीब ये वैसी ही बॉडी है जैसी प्लानिंग कमीशन थी। तो प्लानिंग कमीशन और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उनको मिक्स करके नीति आयोग बना दिया, काइंड ऑफ ऐसा है। तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर, तो इधर भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है किसी पर्सन को, ठीक है। यूजुअली उसमें ये होता था कि आपकी पॉलिटिकल लीनिंग वगैरह देख के अपॉइंट कर देते थे। इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल लीनिंग नहीं देखी जाती है, मोस्टली कॉम्पिटेंस और ये चीज देखी जा रही है। मतलब उनकी एक ब्लेटेंट पॉलिटिकल लीनिंग नहीं आपको विजिबल नजर आएगी, एक ठीक है ओवर्ट पॉलिटिकल लीनिंग तो नहीं नजर आएगी कि सामने दिख रहा है कि ये पर्सन नहीं, ठीक है। खैर उनको सिनर्जी बनानी है, उनको काम करना है, तो वो अपना ही आदमी बिठाएंगे, बट स्टिल। वाइस चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो यही समझ लो कि उसमें जो एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें गवर्निंग काउंसिल है उसका ही नाम। तो गवर्निंग काउंसिल क्या होती है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के गवर्न एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर सारे लोग जो होंगे गवर्निंग काउंसिल के क्या होंगे? मेंबर होंगे। रीजनल काउंसिल बनेंगे, रीजनल काउंसिल स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज, कोई रीजन के लिए एक इशू बना सकते हैं। एडहॉक मेंबरशिप, ये कुछ कुछ अंदर की क्या है, मेंबरशिप की कमेटियां है। एक सीईओ रहेंगे, सीईओ एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो वाइस चेयरपर्सन और सीईओ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ठीक है। अमिताभ कांत सीईओ थे नीति आयोग के, जो करंटली शेरपा है G20 इंडिया की साइड से, ठीक है। जान रहे हैं अमिताभ कांत को? G20 की अभी इंडिया के पास क्या है, इंडिया हेड कर रहा है G20 को। और इंडिया में मीटिंग्स भी हुई है। तो शेरपा ट्रैक जो होता है G20 के दो ट्रैक होते हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंशियल चीजों पे और इकोनॉमी पे इन सब पे डिस्कशन होता है। शेरपा ट्रैक में आपकी जियो स्ट्रेटेजिक और इन सब चीजों पे डिस्कशन होता है। तो हर कंट्री का एक जो होता है शेरपा होता है। शेरपा मीन्स जो पर्सन उस कंट्री के उस ट्रैक को हेड करता है। इंडिया के अभी जो शेरपा ट्रैक को हेड कर रहे हैं वो है अमिताभ कांत, ठीक है। और अमिताभ कांत जो थे वो पहले नीति आयोग के क्या थे? सीईओ थे। अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स टेन्योर, अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी रैंक के अफसर को सीईओ बनाते हैं, मोस्टली आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। स्पेशल इनवाइटी, आप कभी भी एक्सपर्ट्स को और डोमेन एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो। तो ये आपका नीति आयोग का क्या है? कॉम्पोजिशन।
सुन रहे हैं सारे लोग? यस सर। यस हाँ यस सर। यस सर। सुन रहा है ना? रो रहा हूं मैं। नो, आई एम नॉट क्राइंग। ठीक ठीक। बोर हो गए क्या सारे लोग? नो सर। एनर्जी नहीं दिख रही, बहुत एंथुजियाज्म ही नहीं है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला है, तुम्हारा एंथुजियाज्म भी खत्म हो रहा है। आप सब लोगों का। बोलो, कुछ बोलो। आई एम सर एक्सपेक्टिंग। सर नो 5 सर। इयर्स यस यस, स्वाति इज आस्किंग समथिंग। सर 5 इयर्स का जो प्लानिंग है ना उसमें सर 2 बार ये मेंशन किया हुआ है एनुअल प्लान्स, ये नहीं समझ आ रहा है वो कैसे हुआ सर? कहाँ पे? एनुअल प्लान्स, ओके। हम्म, ये एनुअल प्लान्स ये वाला? ये सर ये वाला और पहले वाला ये वाला, हॉलीडेज। ओके। हाँ प्लान हॉलिडेज, ये तो बता रहा हूँ ना कि कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था ना, तो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से 5 ईयर प्लान्स की तरफ गए नहीं वो। 5 प्लान पे उनका फोकस रहा नहीं। प्रीवियसली क्या है कि ये 1966 65 में वॉर हो गया था, ठीक है। 62 में वॉर हुआ, 65 में वॉर हुआ। चाइना वॉर 62 में हो गया, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। 2 वॉर हम झेल चुके थे। उसके बाद ड्रॉट हमने झेल लिया। उसके बाद आप देखोगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी था, बिकॉज 64 में पंडित नेहरू की डेथ हो गई। 65 में आप देखोगे कि शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि शास्त्री जी की डेथ के बाद जो डिस्पेंसेशन थी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसमें वही था कि फैक्शन हो गए, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की मोनोपोली थी, ठीक है। कांग्रेस ही था जो भी था। तो कांग्रेस पार्टी में अब ये था कि हु शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फैक्शनलिज्म आ गया था। कुछ लोगों ने मोरारजी देसाई को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इंदिरा गांधी शुड बी देयर, ठीक है। तो क्योंकि मोरारजी देसाई के साथ कई जो इंटरनल जो लेटेंट डिस्प्यूट्स बहुत थे काफी लोगों के, तो बहुत लोग नहीं चाह रहे थे कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि वो काफी सीनियर नेता थे उस समय। और वो, अगर आप उस सीनियरिटी से देखते तो ही वॉज द डिजर्विंग कैंडिडेट कि उनको बनना चाहिए। बट थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल और थोड़ी सी एक्सट्रीम विचारधारा के बीच में टकराव था, तो एक अलग फैक्शन बन गया। एक मोरारजी देसाई का अलग फैक्शन बन गया और एक इंदिरा गांधी वाला अलग सेक्शन बन गया। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से प्राइमरी फोकस उसी पे था, और ड्रॉट और उन सब की वजह से तो 5 ईयर प्लानिंग पे फोकस गया नहीं। तो इन सब क्राइसिस की वजह से एनुअल प्लान्स पर ही ध्यान गया कि आप एनुअल प्लान्स को चलने दें अभी, और 5 ईयर प्लान को हम वापस जब स्टेबिलिटी आएगी तो वापस फोकस करेंगे। तो ये यहाँ पे इसलिए प्लान हॉलीडे आ गया 3 साल का। फिर स्टेबिलिटी आई तो फिर वापस आप 5 ईयर प्लान पे आए। फिर आप देखोगे कि यहाँ 88 89 91 में यहाँ भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था कंट्री में, मूवमेंट्स चल रहे थे। कौन से मूवमेंट चल रहे थे? एक तो यहाँ पे एक्सोडस एक्सोडस वाला इशू भी हुआ था, ठीक है। एक इशू एक्सोडस वाला हुआ था। उसके बाद एक इशू हुआ था कि मंडल का मंडल पॉलिटिक्स जो चल रही थी, जो इंदिरा साहनी केस और जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था, 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी कम्युनिटी को मिला था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल केओस चल रहा था, अनरेस्ट था सोसाइटी में। तो फोकस उधर था। और सेकंड, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी कंट्री में, क्योंकि फॉरेक्स आपका खत्म हो रहा था, 3 हफ्ते का ही फॉरेक्स बचा था, तो वो को भी सॉल्व करना था। तो जब आपके पास फॉरेक्स ही नहीं बचा है तो आप किस तरीके का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैसे बनाओगे? आप नहीं बनाओगे। तो इसीलिए इस समय भी प्लान नहीं बन पाया, तो प्लान पे फोकस था नहीं। अब आपके पास फॉरेक्स नहीं है तो 5 ईयर प्लान कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना। और बाकी अदर क्राइसिस भी थी, तो फोकस किधर था कि भाई पहले इसको सॉल्व करो इमीडिएटली। इमीडिएटली उसको सॉल्व करने के लिए आपने वो एलपीजी वगैरह रिफॉर्म्स लाए। तो ये दो इसीलिए प्लान हॉलीडे आपको मिला। एक ये प्लान हॉलीडे है, इसमें 3 साल, और ये यहाँ पे प्लान हॉलीडे है। ओके सर। सर तो इस बीच में लाइक ये सब प्लान हॉलीडे का मतलब ये जो ये है ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सब मतलब गवर्नमेंट ही चला रहे थे, वही फुलफिल कर रहे थे। हाँ नहीं, देखो, अगर प्लान, ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं बना हुआ है तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। जो फंक्शन है डे टू डे यूजुअल वो तो चल ही रहे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है। प्लान होता क्या है एग्जैक्टली? प्लान आपके लिए एक विजन होता है कि हाँ मेरे को इन चीजों को अचीव करना है, तो मैं उनको अपने गोल्स को बाइफरकेट, क्या बोलते हैं उसको, डिसइंटीग्रेट करके स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स बना के उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास ये कि विजन नहीं था कि क्या करना है। अब विजन तो तब बनाओगे ना जब आपके पास इमीडिएटली कुछ हो। वही वाली बात है कि मैं बहुत परेशान हूँ अभी, ठीक है, तो मैं अपने विजन पे कैसे ध्यान दे पाऊंगा? मैं अभी की परेशानी को पहले इमीडिएटली सॉल्व करूंगा, तब मेरे विजन पे ध्यान जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है। इसलिए इस समय भी दिक्कत थी कि फॉरेक्स वगैरह नहीं था।
पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था, तो ये दिक्कत आ गई। इसीलिए बाकी बिजनेस, यूजुअल बिजनेस तो गवर्नमेंट संभाल रही है ना, ऐसा नहीं कि प्लान नहीं होता तो कुछ चलता नहीं, प्लान नहीं है फिर भी चल रहा है चीजें। प्लान सिर्फ एक विजन है आपके पास कि हाँ इसके हिसाब से मैं चलूंगा, तो आपके पास एक विजन रहेगा तो आपके पास डायरेक्शन रहती है, ठीक है। सर यस सर एक्सोडस क्या है? आपने बताया ना एक्सोडस था बीच में, वो क्या है? कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है आपने? ऑल द नहीं सर, मैं मूवी देखता ही नहीं हूँ। पॉलिटिकली डिस्प्यूटेड मूवी है, बट स्टिल ठीक है। तो कश्मीर में जो एक्सोडस हुआ था ना, तो वो वाला भी वो खैर उतना प्रिविलेंट नहीं था उस समय इस डोमेन के लिए, बट स्टिल वो भी था, तो उसके बारे में जाके पढ़े थोड़ा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में ओके आ सर। जाएगा आपको। कश्मीरी पंडित एक्सोडस पढ़ना, आज ही पढ़ना, जाके नेट पे सर्च करना मिल जाएगा। ओके सर। मूवी भी उसी पे बनाए वो कश्मीर फाइल्स। चलो कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी है, वीडियो यूट्यूब पर जाता है, मुझे नेगेटिव और एडवर्स चीजों में वायरल नहीं होना है। नहीं सर। बहुत जल्दी आजकल वायरल हो जाती है चीज। क्या है, आप whenever you take sides ना, whenever you take side publicly, then you are always in danger of getting killed by the opponents. you are lynching का खतरा रहता है। तो बहुत सावधानी से अपने विचारों को रखना पड़ता है। अगर आप राइट साइड की फेवर लोगे तो लेफ्ट वालों से डरना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की फेवर लोगे तो राइट से डरना पड़ेगा। तो अपने विचारों को आप बहुत बैलेंस बना के रखें, ठीक है। और अगर आपकी विचारधारा है भी लेफ्ट राइट या जैसी भी है, तो आप अपने अपने अंदर रखें उसको। चलिए, तो ये कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग है, हो गया ना। नीति आयोग के हब से, दो हब से नीति आयोग के, ये देखो ये दिख रहे हैं सारे लोग। तो नीति आयोग के हब है टीम इंडिया हब, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो ये अभी 7 अगस्त, ओ मेरे बर्थडे के दिन 2022 को टीम इंडिया की मीटिंग हुई थी, 7th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी। गवर्निंग काउंसिल मैंने कहा कि वही बॉडी है जो एनडीसी की तरह, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसमें देखो आपको कि प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, और नितिन गडकरी जी हैं, ममता दीदी भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, एंड निर्मला ताई भी हैं, and all the chief ministers are there, and some of the cabinet ministers are also here. So this is the meeting of governing council of नीति आयोग, टीम इंडिया जिसको बोलते हैं, टीम इंडिया। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये थिंक टैंक टाइप का है, इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। तो द आयोग प्लान टू कम आउट विथ 3 डॉक्यूमेंट्स। तो अब नीति आयोग ने प्लानिंग प्रोसेस को अलग कर दिया, उनका अलग है कुछ। तो इनका क्या तरीका है, आयोग प्लान टू कम आउट विथ 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 3 साल का एक्शन एजेंडा बनाना है, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी बनानी है, और 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। तो अभी 3 इयर्स एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर, एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो 5 ईयर प्लानिंग जो वो करते थे ना, पिछली गवर्नमेंट जो प्लानिंग कमीशन करता था, अब ये जो नीति आयोग है वो उसका ये एजेंडा है 3-7-15। तो 3 ईयर का एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर, 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट। ओके, ये इनके काम करने का तरीका है। नीति आयोग के फंक्शंस हैं डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, एक्ट एज अ रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, ठीक है। ये थिंक टैंक है, इट्स द काइंड ऑफ थिंक टैंक ना। तो इट विल हेल्प ऑल द मिनिस्ट्रीज, किसी मिनिस्ट्री के लिए भी थिंक टैंक का काम कर सकता है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फोस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वही स्टेट्स के बीच में एक सिनर्जी बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बीच में सिनर्जी बनाना है। इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, दैट इज द नीति आयोग। नीति आयोग रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये इसकी मेंबरशिप है, ये तो हम पढ़ चुके हैं उसमें, और ऑब्जेक्टिव भी बता दिया हमने। अ प्रो पीपल, प्रोएक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट एजेंडा इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड नीति आयोग। प्रो पीपल मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोएक्टिव एक्टिवली करना है, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटिव मीन्स मेक पीपल स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। स्टेक होल्डर बनाओ, लोगों को आप इंक्लूड करो डेवलपमेंटल प्रोसेस में।
क्योंकि लोग इंक्लूड होते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच बनता है। नाउ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में ये डिफरेंस है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन, इट सर्व्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिटर्न नहीं था, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं बनाई थी प्लानिंग कमीशन, तो न तो स्टैट्यूटरी थी, किसी लॉ की बैकिंग नहीं थी, और न ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो इट्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इट सर्व एज एन एडवाइजरी थिंक टैंक। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है नीति आयोग, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है, बट इसको कहा रहे ये एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल चीजें ज्यादा होती थी, इसमें ये थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है। इट हैड लिमिटेड एक्सपर्टीज, ज्यादा एक्सपर्ट्स इसमें नहीं थे। इट ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम वाइडर एक्सपर्टीज, इन्होंने एक्सपर्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इसमें, इसमें पॉलिटिकल डोमेन के लोग ज्यादा रहते थे। स्टेट्स पार्टिसिपेटेड एज स्पेक्टेटर इन एनुअल प्लान मीटिंग, स्टेट्स को ज्यादा मतलब राइट्स नहीं थे अपनी बात रखने के, तो एक एज ए स्पेक्टेटर ही पार्टिसिपेट करते थे। तो फेडरलिज्म की स्पिरिट को बहुत ज्यादा ये नहीं अच्छे से कर रहे थे फॉलो। इट सर्व्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स। अब स्टेट्स को बिल्कुल प्रॉपर पार्टनरशिप दी जा रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे नीति आयोग में। सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस, सेक्रेटरीज टू बी नोन एज सीईओ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो पहले वही सेक्रेटरीज वगैरह अपॉइंट होते थे, यूजुअल प्रोसेस थे, इसमें सीईओ जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है। इट फॉलो टॉप डाउन, टॉप डाउन बताया था प्लानिंग कमीशन में, टॉप पे बन के ट्रिकल डाउन करना है, नीचे तक इफेक्ट जाना चाहिए उसका। ट्रिकल डाउन समझते हो ना, ट्रिकल डाउन का मतलब है कि अगर बड़ा कोई सेंट्रल लेवल पे या बड़े लेवल पे जो चीजें हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली छोटी इंडस्ट्रीज को क्या होगा, उसका फायदा होगा, ऐसा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच थी डेवलपमेंट की, इन्होंने कहा नहीं बॉटम अप अप्रोच चाहिए हमको नीचे लेवल से पहले नीचे डिसेंट्रलाइज करना है, चीजें वहां पे जाएगी, वहां से हमको क्या करना है, हेल्प लेनी है, वहां पे स्टेक होल्डर बनाना है, लोगों को प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट बनाना है। इम्पोज्ड पॉलिसीज ऑन स्टेट्स एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट्स इज अप्रूव्ड। एलोकेशन ऑफ फंड्स में प्लानिंग कमीशन का रोल रहता था, ध्यान रखना ये एक बड़ा चेंज आया है। प्लानिंग कमीशन का रोल रहता था फंड्स एलोकेशन में, स्टेट्स को फंड एलोकेशन में, जबकि इट डज नॉट possess mandate to impose policies, ये पॉलिसीज को इम्पोज भी नहीं करता, और फंड एलोकेशन में भी इसका कोई रोल नहीं है नीति आयोग का। प्लानिंग कमीशन का रोल रहता था फंड एलोकेशन में, ठीक है। तो पहले प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट होता था, नीति आयोग के आने के बाद वो सब खत्म हो गया। इट हैड पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्रीज को फंड, अभी जो अपन जान रहे हैं मिनिस्ट्रीज को फंड कौन एलोकेट करता था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड एलोकेट करती है मिनिस्ट्रीज को, और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से। पता है हमको फाइनेंस कमीशन बनाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। नीति आयोग के पास कोई पावर नहीं एलोकेट फंड करने का, विच आर वेस्टेड इन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा जाएगा वो बजट में कौन बताता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है। अभी पहले प्लानिंग कमीशन का रोल रहता था स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने में भी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने में फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से गवर्नमेंट अडॉप्ट करके चलती है। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इशू फेस्ड बाय नेशनल प्लानिंग, प्लानिंग में क्या इशू है, फेडरल इशू आ सकते हैं। देखो प्लानिंग में जब आपने पता है कि आपने थिंक टैंक में आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप ओवरऑल प्लानिंग बना रहे हो इंडिया कंट्री के लिए, आपने 3 साल के लिए, 7 साल के लिए और 15 साल के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। 7 साल के लिए मीडियम टर्म पेपर बना रहे हो, 15 साल के लिए आप क्या बना रहे हो, विजन बना रहे हो, विजन स्टेटमेंट, और 3 साल के लिए आप एक्शन एजेंडा बना रहे हो। तो आपने अलग अलग एजेंडा और ये सब चीजें बनानी है। आपने स्टेट्स का क्या किया है, ओपिनियन भी कंसिडर किया है। तो स्टेट्स का ओपिनियन कंसिडर कर रहे हो आप, और फिर आप वे फॉरवर्ड जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इट इज द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट समवेयर स्टेट्स के जो ओपिनियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, तो फेडरल इशू आपके पास आ सकते हैं। इन इंडिया स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड make it easy to do business. Along with that, they are expected to manage their financial resources efficiently and balance their budget. States तो करना ही है, स्टेट अपना काम करती है, जब बजट में पढ़ चुके अपन लोग। However, the majority of states in India are not financially self-sufficient. अब तकलीफ क्या है कि स्टेट्स को बहुत ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, बिकॉज वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैज टू डिपेंड ऑन ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। उनको सेंटर से ग्रांट देनी पड़ती है। मतलब एक तो जो
कमिटेड चीज है फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से वो जाएगा। बट हमने ये भी पढ़ा था, याद करो, कि ग्रांट्स भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है स्टेट को, अगर वो अपने टारगेट में क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। एज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन वेयर स्टेट्स हैव नो रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि किसको ग्रांट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। नीति आयोग का उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन में तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है। स्टेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, वी मस्ट गेट ग्रांट, बट फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड वेदर दे विल गेट ग्रांट और नॉट। तो वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब वहां पे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा। तो नीति आयोग में उसका कोई रोल नहीं है। तो ये एक फेडरल इशू आ जाता है सामने कि भाई फाइनेंसेस के बीच में स्टेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। Further, it is argued that policies formulated by नीति आयोग are based on one size fit for all. अब बात हमने करी कि हम बॉटम्स अप अप्रोच पे जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, बट कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज लेवल पे आप जो प्लान बना लोगे वो प्लान वन साइज फिट फॉर ऑल हो जाएगा। भाई दिल्ली में बैठ के प्लान बनाया है और उसको सारे स्टेट्स को बता दिया कि वन साइज फिट फॉर ऑल है, नहीं होगा ना काम। सब जगह की अलग अलग क्या है, रीजनल इश्यूज हैं। रीजनल इश्यूज के हिसाब से उनको उनका जो प्रोस्पेक्ट रहेगा ग्रोथ को लेके वो अलग अलग रहेगा। तो वन साइज फिट फॉर ऑल डजंट वर्क। दैट्स अ काइंड ऑफ फेडरल इशू कि हर स्टेट में अलग अलग क्या है सर्कमस्टांसेस, हर स्टेट की फाइनेंसेस क्या है अलग अलग है, हर स्टेट की इकोनॉमी क्या है अलग अलग, हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग अलग है। तो आपको वन साइज फिट फॉर ऑल डजंट वर्क। दैट्स व्हाई आप गए बॉटम अप अप्रोच पे, बट उतना इफेक्टिवली लाए नहीं हो अभी तक। मोस्ट ऑफ टाइम दे आर अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी एंड हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू गेट थिंग्स डन टू द प्रोडक्ट आउटकम। ठीक है भाई, वही है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता नहीं है, आप वन साइज फिट ऑल बना रहे हो। तो ये फेडरल इशू है। इतने सारे स्टेट्स है ना, आपको विजिट करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन पॉलिसी मेकिंग, आपको पॉलिसी मेकिंग में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नेशनल प्लानिंग कमेटी मस्ट गाइड ऑल राउंड प्रोग्रेस, इट मस्ट असिस्ट इन अचीविंग नॉट जस्ट फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो मोर सोशली इंक्लूसिव एंड मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन पे जाना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग में अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, दैट वोंट वर्क बिकॉज सिचुएशंस आर चेंजिंग, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस व्हिच आर ग्लोबल एंड इंडिया इज नॉट अपार्ट। ओके, इंडिया को भी वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है। That's why you must diversify your policy making. You must take into consideration the global challenges, like the environment change, climate change is one of the global challenge. So you must consider all these things while making your plan. So diversification of the policy making is also need of the hour. तो सिर्फ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं जाता है, आपको इंक्लूसिव भी जाना है। वही वाली बात है कि व्हेन यू विल गो ऑन द पाथ ऑफ कैपिटलिज्म यू माइट हैव अ वेरी गुड ग्रोथ, but that might result in the income disparity and inequality will be there. So in order to reduce inequality, you must very much cautious while making your policy that we might have a little bit capital cleaning, or we are in the continuum with the pure between the pure socialism and pure capitalism, but we must ensure that the growth should percolate to the growth should happen in such a manner that the last person in the economy should also reap the benefit of that. Okay, this is what we need to ensure, and that is the inclusive growth. तो inclusive growth हमको क्या करनी है, इंश्योर करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? नाउ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम वही है, आपको वही है कि सारे जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में उन सबको कंसिडर करके आपको प्लानिंग बनानी है। दैट्स इट। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स यही है। फेडरल इशू होता है फाइनेंसेस को लेके, और आपकी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ स्टेट्स की अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पंजाब में स्टबल बर्निंग होता है, उससे एयर पोल्यूशन दिल्ली में हो जाता है। स्टेट्स के बीच में ये इशू है, तो काइंड ऑफ फेडरल इशू है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी इस तरीके से बनानी है कि विन विन सिचुएशन रहे दोनों के लिए। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, केरला के सीएम है, यूपी के सीएम है, राजस्थान के सीएम है, आंध्र प्रदेश के सीएम है। आंध्र प्रदेश की है ना, हाँ आंध्र प्रदेश, मिस्टर जगन। तो all these chief ministers are very sad. Okay, these are deliberately I have taken these pictures. These are sad pictures of these 4 chief ministers. These are sad. They are sad in a particular point of time because they need money. Now here this central government, Bapu, central government and Munna Bhai is states. Central government is saying जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। Central government is saying this to states. Now states, the Munna Bhai is asking for money.
पैसे चाहिए बापू, ठीक है। नाउ बापू क्या कह रहे, समझ रहे हो, ये अगर आप समझ रहे हो मीम फेस तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाबू भैया कह रहे हैं रख फोन रख, ठीक है। स्टेट्स कह रहे हैं कि पैसों का नाम सुनते ही लोग फोन काट देते हैं। मीन्स स्टेट्स नीड्स मनी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल फंड्स या ग्रांट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी प्लानिंग प्रोसेस में चीजें खत्म हो गई है, इनको आपको रिवाइज करना है, इसको अपलोड कर देंगे आज। एंड और भी आपको एडिशनल कंटेंट मिले तो डेफिनेटली आपको पढ़ना है। प्लानिंग प्रोसेस के साथ कुछ और इश्यूज होंगे, आपको इनको इंक्लूड करना है उनको, ठीक है। और बताइए क्या आपको प्रॉब्लम्स लग रही है, यू कैन आस्क नाउ। आज का लेक्चर मतलब अब हम आगे पढ़ने नहीं वाले, बट आप लोग बताइए कि क्या आपको इश्यूज है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी 15 मिनट ही बचे हैं तो। यस सर वो लास्ट वाला पॉइंट एक और बार बता देंगे, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट वो यही लास्ट है साइड पे कि जो था। स्टेट्स के इश्यूज जो है ना, स्टेट्स के इश्यूज अलग अलग है, ठीक है। हर स्टेट के इशू अलग हैं, तो आपको सारे स्टेट्स के बीच में एक सिनर्जी बनानी पड़ेगी। दैट सिनर्जी मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो फेडरल इशू वाला पॉइंट है उसी का एक ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम यही है। इकोनॉमी इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एज इकोनॉमी ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू ईच अदर। A feature of complex system in which all the parts are connected is that the system cannot be healthy if any part become very sick. मतलब वही है कि हम जब virtuous cycle बनाते हैं, then everything will automatically fall in line. We know what is the virtuous cycle of economy. Okay, if there is a synergy between the monetary and the fiscal aspect of the country, and the production process is going on, there is enough demand in the market. Aggregate demand is good. Aggregate demand is good, then definitely production process will take place and everything will fall in line. Unemployment will fall in line, the poverty will fall in line, all the macroeconomic indicator will be in stability. But any of the indicator, if any of the indicator is going on the wrong track or not going according as per our vision, our wishes, in that case the virtuous cycle might be converted into vicious cycle. There's a problem with this. So all the things are interconnected. So while making policy, it is always a challenging task to make a plan in such a way that India is also diverse. States have their own aspirations, states have their own problems. You might face federal problems, economy is and so many issues are interconnected, environmental issue is there. All these things must be taken into consideration in the planning process. So it's a very complex system. This is the problem. The system is very complex. तो आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो यही वही चीज बता रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम, यही ठीक है कि बहुत डिफिकल्ट है। स्टेट्स की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेट्स का अलग अलग सोशल सेटअप है, स्टेट्स की अलग अलग ज्योग्राफी है, स्टेट के फाइनेंसेस अलग अलग हैं, वहां पे स्टेट्स के बीच में कुछ इशू चल रहा है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखो कि स्टेट्स के बीच में अगर कोई इशू चल रहा होगा और स्टेट के बीच में अगर टसल है किसी चीज को लेकर, जैसे बेलगावी वाला इशू चल रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक में, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एरेना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर किसी एक एरिया में सोशल अनरेस्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो व्हाट यू नीड टू, मतलब वो भी एड्रेस करना पड़ेगा आपको। एड्रेस आप नीति आयोग के थ्रू उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एड्रेस होगा तो नीति आयोग के जो प्लान बनाएगा उस प्लान को आप प्रॉपरली क्या कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे फेडरलिज्म को और आपको सारी चीजों को क्या करना, देख के चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग। Now देख, further fixing one part of the system alone can make matters worse. मतलब सिर्फ एक पार्ट को अगर आप कभी ठीक कर दोगे तो हो सकता है वो कुछ और बैकफायर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग स्किल्स टू मिलियंस ऑफ यूथ बिफोर देयर आर इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बोल्ड फिक्स दैट कैन बैकफायर। समझ रहे हो, मतलब कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बढ़ी हुई है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है और आपने बोला कि हम स्किल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाओ। तो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे दिया और कम से कम 10 लाख यूथ को और स्किल्स दे दी, बट पैरेलली इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए इंसेंटिव दिए ही नहीं। तो इंडस्ट्रीज तो ग्रो करी नहीं, तो वो 10 लाख लोग जो पहले घर पे बैठे थे और शायद एक्टिवली काम नहीं भी ढूंढ रहे होंगे या कहीं और बिजी होंगे, अब वो स्किल्ड पर्सन है और जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई और ये बैकफायर कर गया, रादर देन कि उनको स्किल देना काम आया। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आपको जनरेट करनी पड़ेगी।
समझ रहे? तो सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, आपको होलिस्टिकली सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो वर्चुअस साइकिल बनेगा, नहीं तो विशियस बन जाएगा। समझ रहे हो? तो फिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिस्टम अलोन कैन मेक मैटर्स वर्स। सिर्फ स्किल दे दी और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो आपने 10 लाख और अनएम्प्लॉय ऐड कर दिए सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि वो लेबर फोर्स में आ गए, और लेबर फोर्स में आ गए तो अब उनके पास जॉब नहीं है। Similarly, this can be seen in the air pollution problem in northern India, which emanates from stubble burning. Thus, the complexity of the task demands a good plan and good strategy. वही है कि भाई पंजाब में अभी जब ये हार्वेस्टिंग का सीजन आए, हार्वेस्टिंग का सीजन गया अभी, ये जो क्या बोलते हैं, खरीफ की हार्वेस्टिंग का सीजन, खरीफ की हार्वेस्टिंग के बाद जो पैडी है, उस पैडी को जो स्टबल बचता है उसको बर्न कर देते हैं। बर्न क्यों कर देते हैं? बिकॉज उनको टाइम कम मिलता है, ठीक है, टाइम कम मिलता है उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी सोइंग के बीच में, तो मैन्युअली वो कर नहीं सकते, तो मैन्युअली नहीं करते तो ऊपर ऊपर से वो काट देते, जो स्टबल बच जाता है उस स्टबल को पूरा मैन्युअली निकालना बहुत लेबर चाहिए, और वो सब उनसे होता नहीं किसान से, तो वो उसको बर्न कर देते हैं। और अगर मशीनरी आप यूज करो उसको निकालने के लिए, हैप्पी सीडर जो यूज होते हैं, वो हैप्पी सीडर उनके पास अवेलेबल नहीं होते और रेंट पे आते, बहुत महंगे आते हैं, तो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो उसको जला देते तो क्या होता है ना कि वो पूरा जो जो उसका स्मोक होता है वो ऊपर जाता है, स्मोक ऊपर जाता है, और जो एयर की डायरेक्शन होती है वो एयर की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ईस्ट की तरफ होती है, तो ईस्टर्लीज चलती है इस टाइम पे, तो ईस्टर्लीज की वजह से वो सारा उड़ के किधर आ जाता है, इधर दिल्ली की तरफ आ जाता है। दिल्ली में उसको कोल्ड एनवायरमेंट होता है, वो थोड़ा सेटल हो जाता है, वही वहां पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। तो ये वाला इशू होता है पंजाब की स्टबल बर्निंग से दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ये एक इशू है। तो यहाँ पे ये स्टेट्स के बीच में दोनों के, दिल्ली मोस्टली ये करता था पहले जब, अभी तो चलो ठीक है सेम पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में भी और दिल्ली में, पहले दिल्ली जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो उनको ब्लेम करते थे कि आपने ध्यान नहीं दिया और आप किसानों को वो हैप्पी सीडर अवेलेबल नहीं करवा रहे हो, इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट इस पे ब्लेम कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो ब्लेम गेम चलता था। अभी दोनों में सेम गवर्नमेंट है, सेम पार्टी है, तो अभी ब्लेम गेम नहीं चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम वो हो रही है स्टेबल बर्निंग की, बट रिलेटिवली थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज किया गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको एयर पोल्यूशन को प्रायोरिटाइज करना है, प्लान बनाना पड़ेगा, दोनों स्टेट की ओपिनियन कंसिडर करनी पड़ेगी, दोनों स्टेट की के जो स्टेट के प्लान है उनको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग बनाना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट, ठीक है। ओके सर। बताइए, प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो गया है आपका, अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। अब अगर आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में स्टार्ट होगा, जीडीपी हम पढ़ेंगे उसमें, मतलब जीडीपी और नेशनल इनकम वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है। बताइए, कोई डाउट्स हैं आपको? पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं आप? अपलोड हो चुका है वो, तो मतलब उसका जो वो है डाउट, कोई डाउट नहीं है? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। चलो, कुछ डाउट नहीं है? सहराब, शेखर, अयान, जॉय, ऋषभ, सोनल, स्वाति, there's so many people with the initial as S. सहराब, शेखर, सोनल, स्वाति। ठीक है फिर, नो डाउट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कीप स्टडिंग, टेक केयर। ये हैंड आउट अपलोड हो जाएगा आज। गुड नाइट। ओके, Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night. Good night, sir. गुड नाइट सर।